Hello. Shall we start? Yeah. I welcome all the participants who are physically and virtually present over here. As we all know that today's topic is recent amendments clarification in GST rates for services and goods. And today we have our own speaker, CA Vikas Kumar Banka, who will explain all the recent amendments and clarification on the GST rate and recent amendments on the GST. There is a huge curiosity hits across the industry and trade bodies. Everyone is evaluating this position as a result of the changes. Today we will analyze the recent changes and the impact of the changes on account of the GST, which we are as a professional need to know so that we can explain the things to our client properly. And I welcome Vikas Bankaji, who is the Treasury Speaker, and I welcome our own DS Agarwal ji, CA Ankit Kanodia ji, CA Barkha Agarwal, and our Deputy Convener Shri Shyam Agarwal. And I request CA DS Agarwal ji to say some words on the recent changes and share his views also. Good afternoon, ladies and gentlemen. GST Council, as you all know, its last 45th meeting, which was held in Lucknow on 17 September 2021, under the chairmanship of Union Finance and Corporate Affairs Minister, Srimati Nirmala Sitharaman, has made certain recommendations relating to changes in GST rates on goods and services. These recommendations include continuation of concession rate of GST, annual further reduction in GST rates to 5% of COVID-19 treatment drugs. Further, while in some cases rates have been reduced to nil or to 5%, in many other cases rates have also been increased. Further, decision in respect of correction in inverted duty structure in footwear and textile sector have been deferred till 1st January 2022. On the issue of bringing specified petroleum products within the ambit of GST, in terms of recent decision of the Honorable Kerala High Court, the Council took a view that it is not appropriate to do so at this stage. E-commerce operators further are being made liable to pay tax on transport of passengers, restaurant services effective from 1st January 2022. Apart from this, certain clarifications have also been issued in relation to GST rates on goods and services. Various notifications and circular 163 and 164 have been issued to give effect to these recommendations and clarification. Hence, today we have with us here Vikas Kumar Banka and eminent speaker on GST with equal expertise on income tax, and I'm sure his expertise lies in analyzing GST provisions from an industry perspective. So when the changes are with relation to amendment in GST rates, so he will be able to give a industry perspective also. So it will happy learning to all of us, and I'm sure he will deliberate length on all the issues. Without taking time further, I now request to take the questions. Thank you very much. Thank you, dear sir. Thank you for your nice word. Now, I request CA Vikas Ankit Kanodia ji to share some views on the recent amendment. So, first of all, good afternoon to all the viewers who are present virtually and those who are present here also. Today's topic, I believe, would gain significance because of the various clarifications issued by the CBIC regarding the various rate changes. So rate changes is one thing, 5 se 12 hua, 12 se 18, 18 se 12. Those may not be much relevant to everybody of us for every particular goods or services for which rates have been changed. But industry-wise, what is the impact of the same? And that supported with the clarifications issued by CBIC as to what was the intent to bring these changes. And along with that, I'll share one point here, which I would request Bankaji also to take care when he delivers, is the clarification issued for the GST rate on the mining rights. So if I read that clarification, it seems that the government is trying to say that, sir, हमारा intent तो हमेशा से 18% था. Certain double ARs had given a judgment that it is 5% up to 31st December
18, and certain double ARs had given it is 18% up to 31st December 18. Post 1st January 19, there is no dispute. Everybody has paid 18%. But from 1st July 17 till 31st December 18, what will be the stand? Whether this wires of this circular can be challenged to this extent, because government is trying to impose a tax. Plus, whether if at all an SSE thinks, yes, I am ready to pay the differential, should the SSE take the input tax credit? If yes, under which provisions of the law? So I would just request you to deliberate on this topic also. And not taking much further time, I thank all of you present online as well as here. And over to the proceedings are now handed over back to convener for taking it forward. Thank you. Thank you, Ankit ji. Now I request CA Rakesh Singhi to offer a flower bouquet to our learned speaker, CA Vikas Kumar Banka. Now I request our deputy convener, CA Shyam Agarwal, to read a profile of our today's speaker, CA Vikas Kumar Banka. Thank you, Kalina sir. It is my pleasure to welcome our very own CA Vikas Kumar Banka ji, who is a very learned personality in and around India, but it is my pleasure to introduce him formally. He is a practicing chartered accountant and secured All India 31st rank in CA Inter exam held in May 1998. He has over 20 years of experience in the field of audit, direct tax, indirect tax, and his core expertise lies in analyzing legal provisions from a practical perspective. He provides consultancy to various business houses on a wide range of issues and also handles their litigation matters. He was invited to be a faculty member for providing training to audit team officers of Bihar commercial taxes, and before that was part of GST training program to senior officials of Commercial Tax Department of West Bengal up to the level of joint and special commissioners. At present, he is chairman of the Membership Growth Database Management Social Media Subcommittee of Association of Corporate Advisors and Executives, a member of Indirect Tax Committee of DTPA, and a member of editorial board of Flipkart e-magazine Design. Before that, he was special invited to Kolkata study group run by the Indirect Tax Committee of ICAI. He has also actively contributed in the preparation of revised technical guide on GST annual return, guidance note on accounting treatment on GST, vetting of published background material on GST, guidance note on bank branch audit, and he has, to his credit, many write-ups and articles in various magazines and tax forums. He is a regular speaker on various GST-related topics like annual return audit, ITC refund, and so on and so forth, at different forums like EIRC, CIRC, NIRC, and its branches and chapters. So just a small introduction of a very learned speaker. Over to Vandana. Thank you. Thank you, Shyam. Now I will not take much time and request our today learned speaker, CA Vikas Banka, to start his deliberation. Thank you. Thank you, Mahendra, and thank you, Sam, for nicely introducing me. First of all, good afternoon to all the viewers of the dais and dignity on the dais, and my heartfelt gratitude to Directors Association, EIRC, Study Circle, and its office bearers, Convener Mahendra ji, Deputy Convener Shyam ji, our learned speakers, Ankit ji, DS Bhaiya, and I also recognize the presence of Chauraria sir, Sanjeev Bhaiya, and all the viewers of the dais for joining today's session on the discussion regarding the important changes on rate after outcome of the 45th council meeting. This is very hard. Ankit has already highlighted that but today's discussion is not on this topic that क्या आइटम 12% में था, क्या 18 में चला गया, क्या 18 से 12 में आ गया, कौन सा 5 में चला गया, कौन सा 6 में आ गया. That is not only the focus. Along with that, we will discuss what is the impact on that rate changes on the industry. Along with, very rightly pointed out by DS Bhaiya regarding the two circulars. Actually, whenever the circulars coming out, DS ने हम लोगों को बताया थे, सिखाया था कि सर्कुलर जब आते हैं तो समझ लीजिए कि क्लैरिफिकेशन आ रहा है, इट इज ए क्लैरिफिकेटरी नेचर. बट माय व्यू
along with my all friends, they will definitely confirm my view also. ये सर सर्कुलर सिर्फ सर्कुलर क्लियरिफिकेशन के साथ नहीं आता, ये कंफ्यूजन लेके भी आता है. So दो सर्कुलर हैं, दो सर्कुलर के साथ में शायद 20 कंफ्यूजन है. So let us discuss that confusion also, whether it is really a clarification in nature or creating some confusions. We will discuss one by one. And I request Ankit Bhai and BS Bhai and Chaudhary ji as well, wherever they feel, please chip in on the discussion. कुछ भी मेरे से अगर मिस आउट हो रहा हो या आपको लग रहा है कि अपने डिस्कशन में फर्दर करना है, तो काइंडली प्लीज चिप इन सो दैट इट विल बी अ फ्रूटफुल डिस्कशन. फ्रेंड्स, एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जब अपने कोई रेट चेंजेस का नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स अपने पास आते हैं, तो उसमें रहता क्या है सर, आइटम नंबर 243 ओमिटेड विद शेड्यूल नंबर 1. अब ये अपने को समझना होगा कि हम जो प्रैक्टिकल में बात करते हैं कि ओमिटेड, डज इट मीन दैट दैट आइटम्स बिकम्स आउट ऑफ द रेट शेड्यूल सो इट इज नॉट टैक्सेबल? ऐसा नहीं है सर. ओमिटेड दो पर्टिकुलर आइटम के कहीं से ओमिट हुआ है तो नेचुरली ये कहीं गया भी है, कहीं से निकला है तो कहीं घुसा है. तो 5 से निकला है तो 12 में चला गया होगा, या 12 से निकला होगा तो 5 में चला गया होगा. तो whenever we read any changes in rate notification through the outcome of these council meetings or through the any notification, तो काइंडली फोकस सिर्फ ओमिटेड पढ़ के ये कंक्लूड मत कर लीजिएगा सर कि अब आपने टैक्स फ्री हो गया या आपने को इसका टैक्स देना नहीं है. उसके बाद के पैराग्राफ जरूर चेंज करिए, वो सिंगुलर आइटम दूसरे जगह इंसर्ट भी हुआ होगा. नंबर 1. नंबर 2, जब आप कोई ABCD से कोई एंट्री नंबर चेक करते हैं, लाइक कोई एंट्री नंबर 105 कैपिटल A है, वो ओमिट हो गया और अब वो जाकर के 248 शेड्यूल 2 में आ गया, मतलब शेड्यूल 1 का 105 A से हट करके से एग्जांपल और 2 में आ गया, तो ये डेफिनेटली पहले ये कहीं दूसरी जगह भी था, इसलिए वो ABCD करके आया है. जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आए थे वो भी दैट आई विल आल्सो डिस्कस कि कौन कौन से ओरिजिनल रेट नोटिफिकेशंस हैं. जो ओरिजिनल नोटिफिकेशंस आए थे वो 1 टू सम सेम एक्सटेंट 250, 243, 256 इस तरह से ओरिजिनल नोटिफिकेशंस आए थे. जैसे जैसे कोई आइटम उसमें इंसर्ट हुए या कोई डिलीट हुए, ओमिटेड हुए, अकॉर्डिंगली ABCD करके सीरियल में इंसर्ट हुए हैं, री नंबर नहीं किए गए हैं. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. जब भी अपना इस तरह का कोई आइटम आता है, से एग्जांपल जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 105 कैपिटल A ओमिटेड मींस ये पहले कहीं था सर, कहीं से आया हुआ है. लास्ट 4 साल में वो पहले कहीं था, अभी कहीं आया है, अभी कहीं और जा रहा है. Accordingly, we will discuss. First, we will cover the goods. What are the important notification to understand the changes of goods rates? That is 8, 9, 10, 11, and 12. My dear friends, can anyone tell me what was the actually rate notification? जब भी अपने सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है, संदीप जी अभी कंफर्म करेंगे. अभी मैं पूछता हूँ सर ये पेन का GST रेट क्या है? आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन नंबर 1 निकालेंगे, 1 को देख करके बता देंगे 18% है, 9 + 9, ठीक है ना. फिर संदीप जी अरे नहीं इसको देखो ठीक से, इसमें शायद नोटिफिकेशन नंबर 12 आया था 2020, उसके बाद रेट चेंज हुआ था. तो क्या 1000 नोटिफिकेशन को खोज से निकाला है? इस 1000 नोटिफिकेशन में रेट में कौन सा आइटम कब चेंज हुआ था? पहला प्रॉब्लम. सेकेंड इशू क्या आता है, अगर आप नोटिफिकेशन सारे ट्रैक भी कर ले, उस नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन नहीं है. उस नोटिफिकेशन में एंट्री नंबर सो एंड सो ओमिटेड, एंट्री नंबर सो एंड सो इंसर्टेड इन शेड्यूल नंबर सो एंड सो. अब ये पहले आप उसको खोलिए, ओपन करके उसको सर्च करिए. तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी दैट वेल एड्रेस्ड बाय द बोर्ड इटसेल्फ. अब आज की डेट में अपने पास में कंपोजिट रेट के नोटिफिकेशन साइट पे अवेलेबल है. So don't go for the principal notification of the rate schedule. Instead of that, go to the directly to a composite supply, composite notifications. Composite notification मिलेंगे कैसे? CBSE के साइट पे जाइए, GST टैब पे जाइए, वहां पे रेट के क्लासिफिकेशंस अलग से हैं, वहां पे जाइए आपको कंपोजिट नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा श्याम भाई कि जब कंपोजिट नोटिफिकेशन में अपने देख रहे हैं तो क्या कौन सा देखें, नोटिफिकेशन कौन सा देखें? तो अपने लोग याद है अपने जब सीए का एग्जाम वगैरह जब अपने देते थे तो साइड से कोड बनाते थे, ये कोड याद कर लो, ये कोड याद करने से आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला सॉल्व होगा, ये कोड याद कर लो, इससे मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला सॉल्व होगा. तो आई मेड ए कोड लाइक दैट. कोड इज 111, 212 and 413. ये 3 कोड अगर आप याद कर लेते हैं
तो यही 6 रेट नोटिफिकेशन है which will cover the goods and services both. That will cover exemption, that will cover RCM, that will cover the tax notifications also. What is the crackdown? What is the keywords in these 6 notification is first taxable notification 1 that is relating to goods, 11 rate notification for services, exemption notification number 2 and 12 2 for goods and 12 for services, 4 and 13 4 for RCM goods and 13 for services. मीन्स डबल डिजिट वाले जितने भी अपने कीवर्ड्स हैं वो सारे सर्विसेज के हैं लास्ट के 2 और फर्स्ट डिजिट वाले गुड्स के हैं. आई एम रिपीटिंग द की इज 111 212 413. अब ये आप अगर याद रखते हैं तो सारे रेट नोटिफिकेशन अपने अच्छे से कवर हो जाएंगे. मीन्स ये जितने भी अभी नोटिफिकेशंस आए हैं जिसमें अपने चेंजेस हुए हैं ये सारे ये 6 नोटिफिकेशन को 6 साल किए हैं. Are you getting my point? अपने जितने भी नोटिफिकेशन में जो चर्चा की है गुड्स के जो चेंजेस आए हैं ये इसके पहले जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं ये इसी 6 नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ की है. जब गुड्स की बात करते हैं तो 1 2 4 किए हैं, जब सर्विस की बात करते हैं तो 11 12 13 किए हैं. Now, अब रेट नोटिफिकेशन में जो अपने डिस्कस कर रहे हैं रेट नोटिफिकेशन गुड्स का सर क्या बताया था मैंने आप लोगों को याद है ना. अपने सर जो वर्चुअल मोड में है वो भी आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में एंड मोर कैन बी शेयर. बोल भी सकते हैं. यस दे कैन आल्सो अनम्यूट हम लोग करके उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. ओके बोल भी सकते हैं. बोल भी सकते हैं. yes so kindly contribute from the virtual mode also if someone wants to chip in. rate notification for goods क्या है सर? 1 नंबर. पहले 1 नंबर को अपने क्रैक डाउन करते हैं ये 1 नंबर नोटिफिकेशंस में है क्या है. देन इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द रेट नोटिफिकेशंस. फर्स्ट है 1 नंबर नोटिफिकेशन 6 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है. 6 शेड्यूल वहां बनाए हुए हैं. ये 6 शेड्यूल्स का कोई मैजिक नहीं है और तो रॉकेट साइंस नहीं है. 6 शेड्यूल बेसिकली रेट नोटिफिकेशंस है. रेट की जो रेट्स है जो लाइक रेट की रेट्स क्या क्या है 2.5 CGST 2.5 SGST. Right now I am talking about the only CGST since I am talking about the CGST notifications. जितने भी CGST notifications हैं उसके पैरेलली IGST के भी notifications मिलेंगे और सेम पैरेलली SGST में भी मिलेंगे. तो अपने अभी सिर्फ CGST पे ही फोकस करना है और उसके पैरेलल नोटिफिकेशन वी कैन अंडरस्टैंड एप्लीकेबल एज इट इज परपस होने वाला है. तो रेट कितने हैं सर? रेट 6 टाइप्स की रेट अंडर द GST हैं. पहली रेट क्या है 2.5% इक्वल टू 5% दैट इज IGST. Then 6% that is 12%, 9% that is equal to 18% and so on 28%, 3% and 0.25% on diamonds वगैरह जो रेट्स हैं. ये 6 नोटिफिकेशन ही आपके शेड्यूल में डिवाइडेड है. 6 शेड्यूल्स हैं. अब मजेदार चीज देखिए सर यहाँ से स्टार्ट होता है. पहला देखिए सर जब 6 नोटिफिकेशन की बात शेड्यूल की बात करते हैं पहला जो शेड्यूल है उसमें 264 एंट्रीज थी. स्टार्ट जब प्रिंसिपल नोटिफिकेशन आया था 8/2017 वहां पे 264 एंट्रियां थी. उसके बाद कुछ डिलीट हो गई कुछ ABCD करके इंसर्ट हो गई. करेक्ट है. शेड्यूल 2 में 243 एंट्री थी. शेड्यूल 3 में 453 एंट्री. दैट मींस एट द रेट ऑफ 18% में 453 आइटम थे स्टार्ट में. बाद में अमेंडमेंट से बहुत सारे 18 से 12 में 12 से 5 में या डायरेक्टली 5 में इस तरह से चेंजेस आए हैं. 28% में 299 एंट्रीज थी. अब आपको लगेगा सर आज के डेट में तो बहुत कम आइटम 28% में रह गए. तो जब ये प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जो अमेंडेड होकर के आज के डेट में साइट पे दिखा रहा है उसमें देखेंगे ना 80% ऑमिट हो गया. 80 to 85% एंट्री ऑमिट हो चुकी है. वो सारे ऑमिटेड कहाँ गए हैं? वो ऑमिटेड होकर डाउन शेड्यूल्स में आ गए हैं. वो 12 में आ गए 6 में आ गए 5 में आ गए डाउन में आ गए. तो आज की डेट में 28% में बहुत कम आइटम है. मोटर कार्स टोबैको सील प्रोडक्ट्स और लग्जरी आइटम्स all are remaining in the 28% AC like that. Correct? And only 4 increase in schedule 6 that is 2.25% related to diamonds and diamond jewelry and all these things. Correct? Moving ahead.
Dear friends, the notifications which is come out on the 30th night September, 30 सितंबर को आया, और हम लोगों के ग्रुप में ना जब भी कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर या कोई भी कोर्ट का जजमेंट तो सबसे फास्ट आता अंकित करेंगे। रात को 10:30 बजे पॉपअप हुआ मैसेज में पट नोटिफिकेशन सारे आ रहे हैं, तो मैंने समझ में आ गया कि ये अंकित के मैसेज है, क्योंकि हम एक्सपेक्टिंग कि 1 अक्टूबर को डेट चेंजेस होंगी, तो नेचुरली 30th नाइट को अगर नहीं मिलेगा तो 1 तारीख से बिल कैसे बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने 30 सितंबर को दिया, 10:30 बजे सर ने हम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया सारे रेट्स आ गए, सारी रात जगिए, सारी रात जग करके किस इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको एनालाइज करिए और सुबह 8:30 बजे अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दीजिए। अदरवाइज तो सर वो 10:30 बजे भी काट देगा, फिर उसको डेबिट नोट बनवाइए और बिल चेंज करवाइए, सारे एक्सरसाइज जाएंगे। क्लाइंट बंदे को ये बोलेगा कि सर आप मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, तो बिल काट दिया। तो अंकित ने अपना काम कर दिया कि भैया रात भर आप जग जाओ, अब रात भर सोने का नहीं है। क्योंकि सर रेट नोटिफिकेशन को क्रैक करना भी तो इजी नहीं है ना, उसको रेट नोटिफिकेशन में क्या मिलेगा, एंट्री नंबर सो एंड सो ओमिटेड। तो सर ये पॉसिबल है कि पूरा का पूरा रेट शेड्यूल विद एंट्री नंबर अगर कोई याद कर सके तो फिर वो कंप्यूटर ही हो सकता है। वो स्कैन करके डाल के रखा होगा, वो भी उसमें कीवर्ड्स मारने पड़ेंगे तो उसको याद आएंगे, ठीक है ना। तो नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 8 correspondingly changes in notification number 1/2017, that was the principal notification industry wise. First, that is the renewable energy devices. Renewable energy devices, it comes under the chapter 84, 85, 94. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब हम लोग रेट नोटिफिकेशंस को देखते हैं तो सिंपली जब आप रेट नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है, रेट नोटिफिकेशन देखेंगे और वहां से अपने उसका 1 डिजिट का HSN कोड निकालना, क्योंकि ना कर रहा है, नहीं निकल सकता सर, सही है नहीं निकल सकता। रेट नोटिफिकेशन में आपको क्या मिलेगा कि सिंगल HSN 2 शेड्यूल्स में भी एडजस्ट कर रहा है, वो अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ। अब अपने को यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, अब अपने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं कि भाई एक सपोज एक फ्लावर ओके है, वो से एग्जांपल HSN को 26 में गया है और अपने रेट नोटिफिकेशन में क्या देखते हैं, वो 26 लिख करके रेट कैलकुलेट लगाते हैं। नाउ वी नीड टू रेज द बिल आइदर ऑफ 4 डिजिट और 6 डिजिट डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन टर्नओवर, राइट। अब इसको कैसे निकालना, रेट नोटिफिकेशन में HSN 6 डिजिट 8 डिजिट में मिल नहीं रहा, 4 डिजिट में भी नहीं मिल रहा है, 2 डिजिट में जो मिल रहा है उसका डिस्क्रिप्शन मैचिंग डिस्क्रिप्शन दूसरे शेड्यूल में सेम आइटम दिख रहा है मेरे को, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जब रेट नोटिफिकेशन में नीचे में जो नोट्स डालना है, वो नोट्स क्या बोलते हैं, दैट आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। Tariff item, subheading, headings or chapter shall mean respectively a tariff item, subheading, heading and chapter as specified in the first schedule the custom tariff act. Means यहाँ जो रेट नोटिफिकेशन में जो रेट डाली है, इट इज इंडिकेटिव ऑनली। आपको HSN कोड और प्रॉपर चैप्टर हेड अगर आपको सेलेक्ट करना है तो गो टू कस्टम टैरिफ एक्ट, वहां आपको 6 डिजिट और 8 डिजिट पूरे मिलेंगे। तो आपको अगर फ्लावर बुके के 8 डिजिट या 6 डिजिट निकालने हैं तो चैप्टर हेड आपको रेट नोटिफिकेशन बता दिया, जीएसटी के नोटिफिकेशन नंबर 1 से रख लिए, उसके बाद आप कस्टम टैरिफ एक्ट खोलिए और उसका 6 डिजिट 8 डिजिट बाइफरकेट कर दीजिए। मोस्ट आइटम इज इजी टू अंडरस्टैंड। कहीं कुछ ट्रिक्स आते हैं तो वहां पे फिर अपने एक्सपर्ट डिवाइस लेकर अपने काम कर सकते हैं। फिर नॉर्मली एक सिंगल चैप्टर का एक आइटम 2 रेट में बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि बुके अगर आप देखेंगे, बुके अगर आपको शेड्यूल 2 में दिख रहा है तो सेम बुके आपको शेड्यूल 3 में दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको अगर 6 डिजिट या 8 डिजिट बाइफरकेट करना है, उसको रिव्यू से अकॉर्डिंगली बनाना है, तो काइंडली रेफर कस्टम टैरिफ एक्ट, वहां आपको मिल जाएगा। वहां एक फर्दर एक रूल्स डाला हुआ है, दैट इज आल्सो आई एम रीडिंग इट आउट टू अंडरस्टैंड द रूल्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इंक्लूडिंग द सेक्शन, चैप्टर नोट्स and general explanatory notes to the first schedule shall so far as may be applied to the interpretation of this notification. Means notification number 1 में जो आपके कस्टम में जो हेडिंग्स सब हेडिंग्स के जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए हैं,
that is as it is applied to the GST also, for the interpretation of the statutes. So please, whenever you are advising to your client regarding the rate notification or the classification or the HSN code, so please go through the Custom Tariff Act also. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जो आपको क्लैरिटी आएगी एक एक आइटम की, bearing may be classified under the chapter 84, but it becomes the part of the fan. ये सब ये पंखे से क्लासिफाई होगा। अगर ये bearing स्पेसिफिकली क्लासिफाई हो गया तो ये जो bearing है ये सिर्फ पंखे में लगती है, बाकी लगती नहीं है, ये पार्ट ऑफ फैन हो जाएगा, तो उसका चैप्टर रेटिंग चेंज हो जाएगा। ये सारे क्लासिफिकेशंस या एक्सप्लेनेटरी नोट्स दैट यू विल फाइंड इन कस्टम टेरिफ एक्ट, नॉट इन दिस नोटिफिकेशन नंबर 1/2017। तो उसकी स्टडी आप बाय फोर्स करना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द रेट। So coming back to regional energy, that is it's coming under the chapter 84, 85 and 94. अपने जब ये 80 नंबर देखते हैं ना सर, नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 में, ये 84, 85, 94 तीनों आइटम में नहीं है सर, ऐसा नहीं है। विंडमिल 84 भी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस के आइटम्स, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस डायरेक्टली इज नॉट क्लासिफाइड इन सिंगल हेड। different items classified हैं, like solar power based services, solar power generators, windmills, wind operated electric generators, waste to energy plant devices, solar lantern, solar lamps. ये तीनों चैप्टर में कवर करते हैं। But under the GST, in notification number 1, it is coming under single line. Single line, that entry number is 234. 234 शेड्यूल 1 देखेंगे, जो अब एक्स हो गया, अब कहानी, अब वहां से ओमिट हो गया, अब कहां चला गया सर? वो चला गया शेड्यूल 2 में, एंट्री नंबर 201 कैपिटल ए। अब ये जो कैपिटल ए है सर, ये क्या बता दिया आपको हिंट दे दिया सर, हम कहीं पहले थे, ये क्यों आपको हिंट दे रहा है सर? कि आपको कट ऑफ डेट पता चल जाएगा कि इस डेट से पहले इसका ये रेट था, अब ये रेट। So whenever you will conduct the audit or verification or the health checkup of the particular SSC or your client, then you can guide him कि सर आपका 1 अक्टूबर से पहले इस एंट्री में था, ये रेट में था, अभी ये रेट में आ गया। इसमें सर अगर कोई नया आइटम ऐड हो, ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता, मतलब गवर्नमेंट को ये नया ले भी लाए, हाँ हो ही सकता है। अगर वो भी होगा तो उसमें तो नीचे आएगा सीधा, वो ABCD करके नहीं आया। क्यों नहीं आ सकते? इंसर्ट करेक्ट से करेगा। नहीं, सपोज करिए गवर्नमेंट एक कोई गुड्स को जो आज एग्जेम्प्टेड शेड्यूल में, हाँ वो आएगा तो ABCD करके आ जाएगा। हाँ वो आज जो एग्जेम्प्टेड है, करेक्ट, तो सारे सबके रेट्स तो ही अपने पास। हाँ तो पहले कहीं था ना सर, इसके मतलब उस नोटिफिकेशन को छोड़कर भी कहीं करेक्ट ट्रांसफर एंट्री हो गया, ट्रांसपेरेंट है। एवरी क्रेडिट अगर होगा तो ABCD लेकर के आएगा। न्यू आइटम अगर एड्स हो रहे हैं, जनरली न्यू आइटम्स, मतलब जनरली अपने यही समझते हैं कि एग्जेम्प्टेड से वो आएगा, नहीं तो एवरीथिंग इज टैक्सेबल टुडे। राइट, सर्विस में ये चांसेस ज्यादा नया आइटम ऐड होंगे। हाँ सर्विस में एकदम आ जाता। सर्विस में क्या होता है कि जब क्लेरिफिकेशंस आते हैं से तो उसमें वो ABCD करके वो फिर उसके डाउन द लाइन के लेकर के डालना पड़ता है। एकदम जैसे आई विल कम टू दैट एग्रीमेंट पार्ट में सर्विस में आया, यस, कैसीनो में जो डिफरेंट डिफरेंशिएट करता है, आई विल कम टू द when I will discuss the service area. that means from schedule 2 to schedule 1 or per se within schedule 1 also, within the notification 1 also, if there is a change, it will come to ABC. ABCD करेक्ट। तो जब भी ABC मिले तो ये तो श्योरिटी है, ये ABCD पहले कहीं और था, चाहे वो शेड्यूल 1 में था चाहे शेड्यूल 2 में था, ये 2 में कहीं ना कहीं था। और अगर नया ऐड हो रहा है तो मोस्ट चांसेस है कि वो लास्ट आइटम ही आए। सब्जेक्ट टू अगर कोई उसका फिर भी वो अगर ABCD करके आ सकता है, सब्जेक्ट टू अगर वो पे HSN कोड पैरेलल आ रहा है उसका, क्योंकि HSN कोड पैरेलल आ रहा है। कैपिटल ए बी यस कैपिटल ABCD करके आ रहा है, अभी तक रोमन 1 2 तो करके चालू नहीं किया है उसमें। सजेशन शुड बी दैट फ्रॉम एटलीस्ट आवर कमिटी आल्सो, कि हम लोग ये बोले कि भाई आप कॉन्सोलिडेटेड नोटिफिकेशन भी देते हैं तो बहुत दिन बाद आता है। कॉन्स्टिट्यूटेड नोटिफिकेशन तुरंत, जैसे अभी जो अमेंडमेंट हुआ उसका तो मेरे हिसाब से पोर्टल पे नहीं है, अभी नहीं वो 31 मार्च 21 का आज के दिन, यस एंड वी आर सपोज टुडे देयर इज अ डिपार्टमेंटल ऑडिट या कुछ भी हो रहा है, सो फॉर द पर्पस ऑफ सेक ऑफ इंडस्ट्री आल्सो, आई थिंक इन आवर दिस पोस्ट बजट मेमोरेंडम व्हिच विल गो थ्रू द स्टडी सब्जेक्ट प्री बजट मेमोरेंडम, सॉरी, वी शुड गिव दैट एज अ सजेशन टू द कमिटी।
श्योर इट शुड बी एक्चुअली ये अपडेटेड होने से कम से कम ये रेट नोटिफिकेशन को लिंक करने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, राइट सर? नाउ one catch is in renewable energy when we are discussing that एक कटअप डेट थी, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई थी, जहां पे कंपोजिट सप्लाई ऑफ सोलर प्लांट था, दैट इज आई थिंक 1st of January 2019, राइट? अंकित ने कंफर्म कर दिया, मतलब वही है। तो अब इसमें क्या हुआ कि पहले एक इश्यू चलता था कि भाई हमने एक सोलर प्लांट लगाया है या कोई रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस इंस्टॉल किया है, तो उसमें कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी है और गुड्स भी है और एक कंपोजिट सप्लाई है। तो डिपार्टमेंट इसमें बोलते थे सर आप ये मेरे को 18% का रेट दे दो, 5 में मैं नहीं दूंगा, ये डिस्प्यूट चलता था। देन दे हैव क्लैरिफाइड व्हाइल सीरियल नंबर 38 में उसमें आप देखिए एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया गया। अपने जब रिन्यूएबल एनर्जी का जब इंजन नंबर 234 देखते हैं, 234 के ठीक एक्ट 234, ठीक है ना, पुराना वाला 234, अभी वो रहा नहीं है। मतलब कभी श्याम मेरे को फोन करके बोलेगा भैया आपको पूरा अभी मिल जाएगा, चला जाएगा, अमेंड हो जाएगा तो वो हट जाएगा। But sir, it is a very good term. X. तो एक्सप्लेनेशन क्या डाला हुआ है? If the goods specified in this entry are supplied by a supplier along with the supply of other goods and services, one of these being a taxable specified in entry number serial number 38 of the table mentioned in the notification number 11 of 2017 blah blah blah, for this purpose shall be deemed as a 70%, means 100 रुपए का आपका कॉन्ट्रैक्ट है सोलर पावर का लगाने का, तो 30% डीमिंग फिक्शन से सर्विस में आएगा और 70% गुड्स में आएगा, करेक्ट है? अब ये जो 70% गुड्स में आएगा, दैट मींस 70 रुपीज पे 5% लगता था एक तारीख से पहले और 30% पे 18% लगता था। ये डिस्प्यूट गवर्नमेंट ने बाय अमेंडिंग दिस नोटिफिकेशन सीरियल नंबर उन्होंने किया है। हुआ अब क्या होगा? 1-10 से क्या होगा? 1-10 से ये जो 5% 70% का जो पोर्शन था, that will converted into 10%, 6% CGST, 6% SGST. My dear friends, I would like to highlight over here one thing. When I analyze the entire notification number 8 of 2017, why government come up with the changes in the rate? What is the need of that? Most of the item, what I come to know, some is in the nature of clarification, but most of the item is to avoid the invertibility structures. सोलर पावर जब अपने इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे देखिए अपने यूज क्या होता है। आयरन एंड स्टील के आइटम है जो 18% में है, सर्विसेज से छोटा मोटा पोर्शन रहता है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं वो 12 से 18% के रेट में है। आपका आउटडोर सप्लाई 5 में हो रहा है। जब आउटडोर सप्लाई 5 में हो रहा है तो आपका जो इनपुट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। जब वो एक्यूमुलेट हो जा रहा है तो वो उसको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट इज दिस आई मीन काउंसिल इज दिस व्यू कि slowly they will enhance or reduce the rates of the inputs or outputs to some extent that ये मैचिंग या इन्वर्टेड का रिफंड नहीं लेना पड़े आपको, पैरिटी आ जाए। इस व्यू से ही इन्होंने इसको 6 से मतलब 5 से 12 में ले गए। तो शेड्यूल नंबर 1 से शेड्यूल नंबर 2 में शिफ्ट हो गया। पुराना एंट्री 234 था, अब नया 201 कैपिटल ए हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम, Service remains constant. सर्विस रिमेन कांस्टेंट। वो तो 18 वाले का या 18 रहेगा, The service में कोई change नहीं। कोई चेंज नहीं। Coming to next industry, that is paper and paper board industry. It is under the chapter 48. एक क्या पहले एंट्री थी, पुरानी एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ, पुरानी एंट्री पहले क्या थी, एक्स एंट्री। सो अंकित ने हाइलाइटेड टू एक्स, अच्छा वर्ड लग रहा था, कंटिन्यू विद एक्स ही रहता है। पुरानी एंट्री क्या थी? ओल्ड एंट्री थी कार्टन, बॉक्सेस, केसेस ऑफ कोरोगेटेड पेपर एंड पेपर बोर्ड। ये अपनी पहले एंट्री थी। कहां थी सर? एंट्री नंबर 122 इन शेड्यूल 2, दैट मींस ये 12% में था, ठीक है ना। अब नया एंट्री क्या है? ये जो पुरानी एंट्री पूरी की पूरी एंट्री ही डिलीट हो गई। एंट्री डिलीट होकर के नई एंट्री आई है शेड्यूल 3 में, दैट मींस कि नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम 12% टू 18%। With the amendment in entry itself, क्या amendment entry में? Let us discuss.
new carton, boxes, cases, bags, and other packing containers of paper, paperboard, cellulose weaving, or wraps of the cellulose fiber, box fiber, letter tray, and similar articles of paper or paperboard of a kind, usually of a shop or leather. सर ये कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ कि पुराना जो एंट्री था ना शेड्यूल 3 का और यहाँ शेड्यूल 2 का जो एंट्री था, दोनों को मिक्स करके सिंगल एंट्री डाल दिया गया। तो क्या पहले कंफ्यूजन था कि वो कोरिलेटेड बॉक्स वगैरह है वो 12% पे है, वो भी क्लेरिफिकेशन आए हुए हैं, बट आई विल डिस्कस व्हेनेवर वी डिस्कस द क्लेरिफिकेशन दे दिया। यहाँ पे 12% का आइटम था, वहां जो 18 था, दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया। अब ये एक सिंगल एंट्री रह गई है, सिंगल एंट्री रह गई है 153 कैपिटल ई इन शेड्यूल नंबर 3, ठीक है ना? तो सर शेड्यूल 3 में जो एंट्री था वो भी ओमिट हो गया क्या? हाँ, मतलब 18 एक आप बोले 12 में एंट्री था शेड्यूल 2 का, करेक्ट। एक 18 में सेम चैप्टर में शेड्यूल 3 में था, तो दोनों ओमिट होकर एक ए आंसर ये रिजल्ट होकर के दोनों को मर्ज कर दिया गया, मतलब शेड्यूल 3 की भी एंट्री को ओमिट किया गया। ओमिट किया गया, परफेक्ट। दोनों एंट्री ओमिट हुई है, दोनों मिलकर के नया जनरेशन हो गया, एक सिंगल एंट्री हो गया, मतलब दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, एक सेम शेड्यूल से एक एंट्री ओमिट होकर उसी शेड्यूल में वापस घुस रहा है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। यस। तो पहले वो कहीं था सर, सेम शेड्यूल में रहकर भी कहीं था। हाँ कहीं था ऑफ कोर्स, एकदम। ये अपने लोग को ये अपने क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो रेट चेंजेस होता है ना, ये अपने को हिंट देता है कि पहले कहीं था क्या। एकदम ये जब अपने 2 साल 3 साल बाद जब अपनी ऑडिट आएगी, तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर को अपने को बताना पड़ता है कि सर इतने तारीख तक आप यहाँ थे, उसके बाद हम इतने वहां तारीख तक आप यहाँ आ गए, वो पेन नहीं लेंगे, वो उसके बोलेंगे आज क्या है, वो क्यों नहीं दिया, एकदम तो बताना तो उनको बताना पड़ता है कि सर नहीं इतनी तारीख तक आप 30/9 तक आप वहां थे, यहाँ नहीं थे। इस 9 के बाद अब एक्स हुए। Now, coming to next industry, that is chapter number 49, मतलब 48 अपने लोग डिस्कस कर लिए, 49 आते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में 12 मतलब जो 12% की रेट थी, वो सारे की सारे आज की डेट में 18% में कन्वर्ट हो गए। एंट्री नंबर 127, 128, 129, 130, 131, 132, फ्रॉम 127 टू 132 गई, अब एक्स हो गई। अब एक्स होने के बाद नया क्या एंट्री आया सर, 156 कैपिटल है, 157 कैपिटल है, 157 कैपिटल ए से लेके 157 कैपिटल एक्स, ठीक है ना? तो दैट मींस 153 के ठीक नीचे चला गया ये नया एंट्री फिर ये चेंजेस रेट का 12 से 18 में आ गया। तो ये सारी जितनी भी प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज थी उस पे 12 से 6। अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता है, तो सर इससे क्या प्राइस बढ़ जाएगा? ये पहले से इन्वर्टेड ड्यूटी के पैसे बहुत लोगों के ब्लॉक हुए, वो अल्टीमेटली उनके रिलीज हो गए। ये जो उनके ब्लॉक हुए पैसे हैं जो 18% में आएगा, और उनका कैश कंपोनेंट का पेमेंट बनेगा, वो कैश कंपोनेंट का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, पुराने जो एक्यूमुलेटेड हो रखे हैं जो रिफंड नहीं आ पाए उनसे रिलीज होगा। दिस इज अ मेजर पॉइंट। But sir, accumulated हो के रखें, you are saying accumulated, but an SEC में would have taken a call earlier कि भाई मेरे को तो इसको मिलना नहीं है, तो मतलब इनकम टैक्स में खर्चा मारकर उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट ले। If I say from that SEC's point of view, हाँ, then it will increase cost for me. so in that case whether they have reversed that amount in electronic credit or they also Yes, of course. They have reversed. They had availed the credit, but they saw after 2 years down the line that my accumulation has come to say 50 lakhs. right, And near future it was not being seen कि there is any possibility of getting it used. right, So while finalizing the balance sheet of say 1920, the SEC took a call कि सर अब अभी नियर फ्यूचर में तो रेट दिख नहीं रहा इंक्रीज होगा, ये 50 लाख कब जाकर खत्म होगा ये भी नहीं दिख रहा है। correct. So let us expense it out. How they have done it? So- This is my question ki whether they have Reverse it through DRC 03 or in 3D, anything like that. anything like that. That means they have filed DRC 03 Correct. for reversing of electronic credit ledger. Correct. What the reason they have given in DRC 03? Reversal of credit, suo motu. सुबह मोटर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, मतलब अब मेरे को नहीं चाहिए भैया वापस ले जा। Correct. But the reason was what? Reason यही था ना कि हमको फोर्सी नहीं हो रहा था कि हमको रिफंड नहीं मिल रहा, सरकार ने बोल दिया इस केस में रिफंड भी नहीं है। It is not a case of inverted duty. Suppose say it is a case of railways. Right. तो मेरे को उस Chapter समय 87 I will come to that. करेक्ट, उसमें जब हमको मिल भी नहीं रहा था तो मैंने कॉल लिया कि भाई ठीक है एटलीस्ट इनकम टैक्स तो उतना बचा लो,
सर 48 49 में ये मतलब रिफंड के प्रोविजन थे, ओनली 87 में फाइंडिंग है वैल्यू डेलीगेशन को 5,770, एकदम आप सही बोल रहे हैं. I am just taking a general example. Suppose I am blocked from refund राइट. and I have an accumulated. I took a call to write it off. I had written it off and I had taken depreciation or whatever income tax expense benefit. Now today suddenly government says ना इस दिन से तो आपको 18 देना है. Correct. So do So can they recredit this amount? This is my question to you. The question Can they is recredit? whether it my can be question comes to your reclaimed. point that price बढ़ेगा क्यों नहीं? So I am of the view in that case if I need to if my rate of the finished goods are increased and I do not have any accumulated benefit, so in my case it cannot be a case of anti-profiting. Ankit, इसमें issue क्या कि the issue is whether it can be reclaimed. No sir, I have so much to reverse. It नहीं, is आपने not किया, हाँ. मैं अभी बोल रहा हूँ. आज के दिन. Because the view is, can we reclaim that? See, Sir, sir, instead of gaining 30%, I want to gain 100%. so 64 does not debar me. नहीं, जैसे क्या है कि वहाँ पे हाँ, इसलिए हम बजट के लिए सोच रहे हैं ना, एकदम हम reclaim कर सकते हैं. 16(2) में जैसे अपने पेमेंट बाद में कर देते reclaim का provision है. Sir, but यहाँ तो बाकी केस में भी कि can we reclaim it? I think we can reclaim it. Why my view is that 16(4) debars me to take the first credit. There is a board circular in service tax clarifying rule 47 CC. Okay, right. You are thinking about only 30%, I am thinking about 100%. Better to take the recredit of the entire amount. Yes, the credit if I can take and I can revise the income tax whatever fixed may be. दो Revise तो करेंगे. दो जो reclaiming का उधर से problem जो मैं 30% खर्चा मार अभी इवेंट का बुक कर दूंगा. उस पर 30% इसका रिवर्सल आप इधर रिवर्सल कर लो. Yes, yes. ऐसे 41 अप्लाई हो जाएगा सर. एकदम. So my point is, in that case, coming to the question that whether price can increase, yes, price can increase, but we can suggest that instead of price increase, you recredit it. You can recredit it because yes, it may be a point of litigation of 64. litigation point, right? That may be still. But some But the 64. law point, when we are talking about the law point, the restriction of 16(4) is only for the first credit, not for the second Sir, credit. law does not state that. No, my point This is, may be interpretation. It is the interpretation because they are coming from excise regime. Correct. Wherein this is the board circular itself. Correct. They say that it is only for first year. लेकिन ये भी है कि वो ये बोल नहीं रहे हैं तो वो मना भी तो नहीं कर रहे हैं. Of course, when something is not explicitly और prohibited, दूसरा की 16(2) से लिंक करके अपने बात करते हैं कि वहां पर स्पेशली बोला गया है. एकदम वहां तो बोला ही इसलिए हम गया. यहाँ पर अपने इसको गवर्नमेंट तो ये बोलेगी ना सर वहां पर वो हमको ये देना था इसलिए हम बोल दिए. यहाँ लिटिगेशन हमको बोलना ही नहीं था तो हम क्यों Silent हो गए. बोले क्यों? वो साइलेंट तो अल्टीमेटली तो सर आपके पास तो केस आएगा ना 100%. तो सर के पास आपके को मिलकर ही आगे बढ़ेगा. देखिए आप 30% की जगह पे हमको 100% की बात कर रहे हैं. हम तो 100% क्यों छोड़ रहे हैं? हमने बेसिकली कर भी दिया है. बीबीबी ने रिवर्स कर दिया है. तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी इफ यू रिवर्स इट देन यू कैन ऑफर दैट अमाउंट अंडर द इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 41 I told you and this then the because, recredit. because practically for a railway client of mine, it was done. They did it last year. Okay. That now their rate has increased. So now they are saying अब मेरा and their tender is with government, so nobody will give them a single extra penny. Right. It is everything inclusive of all. ऑल. And around good in crores the reversal was. Yes sir, that is true. That is true. So that is why I took that. आप बोल रहे हो सुनेगा ना आप बोल रहे हो Sir है सर दोनों साइड डिस्कस करना है ना. That chapter 87 will also I discuss when I come to Sorry, sorry for it. अभी no, this is a good discussion. 49 और 48 में भी लोगों के अच्छे खासे पैसे ब्लॉक हुए हैं. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो एक फार्मूला है रूल 18 में वहां पे इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जो एक्चुअली मिलना चाहिए वो मिले. पहला वहां पे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन आया हुआ है. ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिलना चाहिए वो मिले. एकदम एकदम ये ऐसा अच्छे से सुंदर डिजाइन किया हुआ है. एकदम Either way जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर लक, डिपेंडिंग अपॉन योर कैलकुलेशंस, डिपेंडिंग योर प्री डिसाइडिंग traditional officer also. that is the that is over to the separate issue. Correct. But लेकिन ये फैक्ट है तो जिनके पैसे ब्लॉक में 49 48 से चैप्टर्स वाला की ये गोल्डन चांस है कि उनको यहाँ पे अब रिवर्स में चालू हो जाएगा. This is time one. Coming to the next item, that is plastic and article waste and scrap. The item of the wastage and scrap of the plastic comes under the chapter 39. The new entry is again 101 capital A. Ex entry was 187 capital A. Second That time means ये कहीं से आया है. ये कहीं से आया है और कहीं जा रहा है. second round of. सेकेंड राउंड हो सकता है, थर्ड राउंड हो सकता है. ठीक है ना? नहीं इसमें also I have a question sir. Yes.
Like the entry says plastic container entry. What is the word? Waste pairing of scrap of plastic. So I suppose an example. I am say into manufacturing district. I am purchasing chemicals. So chemicals are coming in plastic drums. Right. And that plastic drum is not used in my manufacturing, so I sell it at a scrap value. Correct. So whether That will that come under chapter 39 because you are selling the plastic drum itself. correct. So it will come under chapter So means 39. for that the rate will increase. Correct, correct, 18%. Next item is chapter 96. Pen and pencil. सर ये फैक्ट है कि जब कंप्यूटर आया ना उसके पेन का यूज हमारे हिसाब से 85 to 90% या 95% तक कम हो गया। डीएससी आया तो वो भी चला गया। क्योंकि आज के डेट में वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यूज्ड टू यूज पेन ओनली फॉर सिग्नेचर और टिकिंग। अब तो वो भी चला गया। वॉचिंग भी खत्म हो रहा है, सब सॉफ्ट में रहता है। हाँ। सब ऑनलाइन ऑडिट्स हो रही हैं। तो पेन एंड पेंसिल पे एक्सेस जो रेट इंक्रीज हो रहा है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अपने लोग पे नहीं आएगा, इसलिए वरी नहीं होना। डीएससी पे रेट बढ़ाया होते तो अपने वो चिंता होती है डीएससी तो अपने यूज करने नहीं, साल में 2 साल में 1 साल में चेंज करने। इसमें क्या चेंज किया जा रहा है? जो अपने वेंडर बच्चे के ऊपर तो पॉकेट तो ही रहे। हाँ, very well said. अच्छा, जिसका बच्चा नहीं है। सर मैं इतना कुछ सोच रहा था कि संदीप भाई बेटा कुछ बोले नहीं। Very well. Very well. आजकल तो भी स्कूल से ही लेना पड़ता है। अभी लास्ट 2 साल से क्या हो रहा है ना कि बच्चे को भी पेन पेपर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सब प्रिंट आउट निकल रहा है। वेरी बैड शेप आई थिंक एज बिकॉज़ कंप्यूटर में जो ऑनलाइन हो रहा है ना कोई यूज नहीं कर रहा है। पर मेरा एक एआई के लिए पेन इंडस्ट्री में पूरा 40% रखा हुआ है। फिर एक उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में गए। बेसिकली दे आर ट्राइंग नाउ 18% जो आ रहा है ना वो लोग समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। यूज कहाँ करेगा? पहले जो पुरानी एंट्री थी, लेट अस कमिंग बैक टू द पेन, चैप्टर 96 में पेन एंड पेंसिल बोथ कवर है, ठीक है ना? इसमें पहले जो पुरानी एंट्री थी दैट आई एम रीडिंग नाउ, दैट वाज अंडर चैप्टर हेडिंग 9608, एचएसएन कोड 9608 था और पेंसिल का 9 है, ठीक है ना? पहले एंट्री क्या थी? फाउंटेन पेन, स्टाइलोग्राफ पेन्स एंड अदर पेन 18% में था, ठीक है? और दूसरी जो पेन थी वो बॉल पेन, फेल्ट टिप्स एंड अदर टिप पेन एंड मार्कर्स, ये भी 18 में था। और जो फाउंटेन पेन के अलावा जो दूसरी पेन थी वो 12% में थी। Are you getting my point? मीन्स अदर देन फाउंटेन पेन और स्टाइलोग्राफ पेन वो अपने 12% में थी। अब क्या हो गया, ये लोग सब मिला दिया, सब मर्ज कर दिया, मर्ज करके सिंपली उसी हेडिंग में नीचे से ऊपर लेके, इसमें देखिए मजेदार, इसमें एबीसीडी नहीं है, ऊपर वाले ने अमेंड कर, उसको अमेंड कर दिया, ओमिट नहीं, 12% वाला ओमिट कर दिया, 12% वाला ओमिट कर दिया, 447 वाले को नई एंट्री नहीं डाल करके सेम एंट्री में सिर्फ उसको अमेंड कर दिया, ऐड कर दिया उसे, ऐड कर दिया उसको, एंट्री सेम रह गया, एंट्री सेम रह गया, ठीक है ना? वो एंट्री में भी चेंज तो हुआ ही सर, मतलब ऐड होने पर भी कैपिटल ये नहीं है, दिस ओनली द वन ऑफ द एक्सेप्शनल, इसमें एक्स नहीं हुआ, सब्स्टिट्यूट हो गया, this is more confusing because this is more confusing because वो रेट मतलब उसका सिर्फ नोमेनक्लेचर हेडिंग चेंज हो गया, उसके कारण कुछ एंट्री चेंज हो गई जो ए से नहीं पकड़ रहा है, ए से नहीं पकड़ रहा है, ओमिटेड से तो अपने देखेंगे कहीं ए आया, बी आया, सी आया, बेटर वे क्या था, वो 447 कैपिटल ए लेके आके दोनों एंट्री को मिला देते तो वो कंटिन्यूटी में रहेगा, कहीं पहले वो सब पैरिटी हो जाता है, सारा अमेंडमेंट का पैरिटी, एक एंट्री ऐसी जो मतलब मिली है, थोड़ा बहुत दिखा दे नोटिफिकेशन, खाली ये एंट्री पहले बना, हम लोग तो सोच ही नहीं पाते सर, आप बता दिए तो समझ में आ रहा है। Coming to the railway, that is chapter 86. Just right now we have discussed with the MP also. ये इसमें क्या था कि रेलवे लोकोमोटिव्स पावर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, अदर रेल लोकोमोटिव, डिफरेंट जितने भी चैप्टर्स हैं 86 में, इन्वर्टेड ड्यूटी में एक यही आइटम है जिसका रिफंड ब्लॉक है बाय नोटिफिकेशन नंबर 5/2007। बाकी जितने भी इन्वर्टेड ड्यूटी में गुड्स के रिफंड्स आते हैं सब अलाउड, अर्लियर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था, वो भी बाद में अलाउ हो गया, करेक्ट है?
इसमें चैप्टर 86 में ये आज तक इसका इन्वर्टेड ड्यूटी का ब्लॉक, ये आपको रिफंड नहीं देंगे। मीन्स आप खरीदिए 18 में, खरीदिए 12 में, लेकिन आप बेचिए 5 में। ठीक है, अब मेरा जी 7% और 13% जो एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको बोर्ड बोल रहा था कि भाई इसको दूसरे जगह यूज कर लीजिए, दूसरे जगह यूज करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको वापस नगद ग्राहक वापस नहीं करेंगे। तो देयर वाज अ स्ट्रांग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज कि भाई ये 12% 18% मेरा कॉस्ट हो जा रहा है, 12% जो डिफरेंशियल जो रेट है, तो उसका मैं क्या करूं? यूज करके बोल रहे हैं मेरे पास तो कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, मेरे पास यही बिजनेस है, मैं कहां यूज करूं उसको? तो अल्टीमेटली वो एक्यूमुलेट हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ सर, ये पहले जो एंट्री पहले 5% में थी, वो आई अपने शेड्यूल 2 में विद द रेट ऑफ 12%। इसकी एंट्री नंबर 205 कैपिटल ए टू 205 कैपिटल एच है। मतलब ये बता दिया कि पहले कहीं और थे आप, उसके अब ये फिर और कहीं जा रहे हैं, अब ये 18% में आ गए हैं। तो अब इनका ऐसे भी मतलब जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है क्लाइंट्स के 12 आने के बाद भी अच्छा खासा यूटिलाइज हो गया था, अब उन लोगों का एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम नहीं रहा। Still there was some accumulation on account of few of the stakeholders or RTP, and they are represented before the board. Now this increase coming from 12 to 18% itself. अभी 18 में आया है। Now cash outflow. अब कैश आउटफ्लो चलो, कैश आउटफ्लो 12 में तो बहुतों के होना चालू हो गया। हो गया था, एकदम बात सही। 12 में होना चालू हो गया है, लेकिन अब 18 में 100% कैश आउटफ्लो चालू हो गया ना, अभी तक ब्लॉक नहीं होगा, तो पुराना यूटिलाइज हो जाएगा। But majorly these tenders are with government parties. 100%। तो ये जो रेट इंक्रीज का क्रॉस जनरली वो रहता नहीं, वहां पर प्रॉब्लम यही आ रहा है अभी कि जो 18 भी हुआ, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, चलिए नए कॉन्ट्रैक्ट में तो रेट भी वैसे ही कोट होगा कि 18 के हिसाब से मिले। जहाँ इंक्लूसिव है वहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ रेट एज पर एप्लीकेबल है वहाँ जनरली कोई एप्लीकेबल वाला सब देती नहीं है सरकार। सरकार बोलती है हम तो आपको दे दिए इतना में, अब आपको 5 देना है कि 12 देना। यू आई जस्ट टेल हियर वन थिंग, one of the cases I was seeing that in 2017 when GST came, road contractors, अब एक आदमी वो वैट रिजाइम में कंपोजिट में था, सर्विस टैक्स में कोई का आंसर रजिस्टर्ड ही नहीं था, निकल गया। अब जीएसटी में he is from the चंदन नगर साइड, जहां पर he does not have adequate consultant maybe for that matter, so he took a new migrated to GST under composite scheme, and he is only a PWD contractor. His turnover is say 25 crores through PWD only, no other work. And all along 17, 18 to 19, 20 he has paid composition service GST. His turnover is 20 crores. And in all the PWD orders that he is receiving, the order copy says one copy mark to Commissioner of State Tax, Belagata. And now that Commissioner of State Tax, the DRI Bureau Office has rated stating you are not eligible for composition, but you have paid for, and he has not availed input also. He has never availed any input. Now what? कंपोजिशन इनपुट तो मिलता ही नहीं है ना। नहीं मिलेगा सर, वो लिया भी नहीं। अब उसके ऊपर बोला गया भाई आप 12% रेट है उस एंट्री का, रूट का 12% आप टैक्स दीजिए, इनपुट तो 16(4) में खत्म हो चुकी है। Now that person is saddled with a liability of 3 years of 8 crores. Only tax I am speaking, interest penalty तो चलिए छोड़ दी। राइट, तब ये तो फिर आपके पास ही जाएगा। चल रहा है, मतलब just I am sharing all the Work in progress. contractors are in a mess. in a mess, correct. It is in a mess. We are in a mess. And DGGI recently has asked PWD a list of all such contractors, because this case I am referring to, it was started by state through bureau. If you find the print, take the copy of the print from me. But he is also find a read. This is against this. Next item, beverage, spirits and vinegars, chapter 22. Carbonated beverage of fruits and drinks, carbonated beverage with the fruit juice, ये आपका शेड्यूल 4 में 12 से नई एंट्री आकर के 28% चला गया। मतलब फ्रूट जूस अगर है, फ्रेश जूस पीजिए वो 12%, कार्बोनेटेड जूस पिएगा 28%। सिर्फ फ्रेश जूस ही पीना है, अदरवाइज डिफरेंस 16% और लेना पड़ेगा। इस पर बहुत लिटिगेशन है। लिटिगेशन तो होना ही है। ओल्ड लॉ, मतलब एक्साइज लॉ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एपीफिस का कि इन दैट रिजाइन आल्सो उस पे रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स, व्हाट
सुप्रीम कोर्ट डिफरेंशिएटेड विद फसाई गाइडलाइंस, Correct. क्योंकि भाई आज मैं कोको कोला सपोज मैं फ्रूटी बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ जीएसटी लॉ तो नहीं बोलूंगा, मेरे को तो फसाई को भी देखना है। तो फसाई के गाइडलाइंस से पार्ले एग्रो का जजमेंट है, जहां पर बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ कि क्या रेट लगेगा। इनफैक्ट दिस रेट बिफोर दिस रेट इंक्रीज इन महाराष्ट्र and Gujarat and Tamil Nadu, DGGI had raided several not Coca-Cola level bottlers but local level bottlers. From that, what happened? Hindustan Coca-Cola went to Tamil Nadu AAR and Gujarat AAR, and both get conflicting judgments. एक AAR ने बोला नहीं फ्रूटी में 12 ही लगेगा, कार्बोनेटेड है जो भी है 12 लगेगा। एक AAR ने बोला नहीं 12 नहीं लगेगा तो 28 ही है। जब 28 they treated it as good as carbonated drink. Now with this confusion of AAR, CB this council thought it fit कि भैया 28 ही कर दो। At least it was good sir कि council ने आपको, अगर ये एंट्री मैं बहुत ध्यान से देख रहा था because I was working on it, in the press release and in the communication during the press conference it was stated that it will be brought from retrospective effect. कि उनका ये मानना था कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक पर हम 28% फ्रूटी पर मांगेंगे आपसे, ये हम, मेरा तो इंटेंट 117 से था, आप नहीं दे रहे हैं वो एक अलग चीज। बट टू बी वेरी ट्रू एंड दिस केम आउट, जब उसमें इफेक्टिव डेट तो भाई जिस दिन आया उस दिन से 1 तारीख से था। इट वाज नॉट बिकॉज सर्कुलर नहीं आया उसके ऊपर सर्कुलर आ जाता माइनिंग जैसा, तब बांट लेते। तो जितना फ्रूटी हम लोग 4 साल में पिए वो रिकवर हो जाता। आपसे क्या पैसा थोड़ी Anybody for that matter, that is the point. And anti-evasion DGGI, everybody was looking for this period. इसमें चेंज नहीं हुआ, उस पर अभी भी मामले चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलेगा सर। इसमें सर्कुलर 163 में देखिएगा गुड से क्लैरिफाई किया ना, वो भी मैं आपसे पूछूंगा सर, आपसे पूछूंगा कि उसे क्या करना है। वही सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन है, वो बेनिफिट सबको क्यों नहीं मिलता है, अब उसको भी डिस्कशन करेंगे, राइट। Mining and minerals industries, that is converted from chapter 26 to 5% to 18%. Serial number 138, 139 to 148, it is shifted to 18%. Simple. Chemical products, biodiesel, rate changes simple, 6% to 6% clarification. Now coming to the services. Two rate notifications in respect of services was given on 1st of October 2021, that is 6 and 7. One is for taxable and one is for exemption. First entry, temporary or permanent transfer of permitted the use or enjoyment of intellectual property right in respect of goods other than information software, that was at 12%. That means information software वाले 18% में थे, other than information वाले 12% में थे। अब ये नई एंट्री जो आई है, नई एंट्री में ये पूरा का पूरा 18% चला गया, सीधा है। मतलब 12 वाला स्लैब खत्म, अब सीधा 18 में आ गया। I have a query on this. Yes sir. Now information software, there is a definition जो भी वहाँ दिया हुआ है। My case is, suppose I am importing certain know-how of say a shoe manufacturer in Germany, और मैं उसका वो know-how लेकर इंडिया में वो यूज करूँ, कोई गुड्स नहीं आएगी मेरे पास। मतलब इट इज नॉट अ केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बट मेरे पास डिजाइन्स आएंगी, टेक्निकल राइटअप्स आएगा, मेल के ऊपर आएगा सब चीज। सो वेदर दिस know-how which I get is information technology know-how जो अभी तक 12 में थी। Suppose my case is of a period up to 30th September 21, or whether this is still an normal IPR which is taxable at it. know-how किस रेस्पेक्ट में आप ले रहे हैं? हम know-how ले रहे हैं डिजाइन्स एंड जो भी उसके टेक्निकल राइटअप, उसको यूज क्या करें? उससे मैं इंडिया में शू बनाऊंगा। ओके, करेक्ट। दिस इज द फैक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आया नहीं। It's a, but what is that entry? Entries here, old entry was temporary or permanent transfer permitting the use or enjoyment of intellectual property in respect of goods other than information technology software. In respect of goods, Right? so what is the intent of this entry to tax? This entry is in either, there can be It two has to be interpretations. goods.
it has to be goods. Yes, Means- on which IP rights is transferred. Other than introducing software technology. Because see, the intent is written over here is temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of intellectual property rights in IPR. respect of goods. So right in respect of goods, not goods per se. Correct. So right is always see goodwill, जैसे टेक्नोलॉजी नो हाउ जो होती है ये तो गुड्स हो ही नहीं सकती है, Right. गुड्स के पेटे वो राइट्स होना चाहिए. Correct. So again I come back to the example, I am taking a right in respect of goods. It is not goods I am taking. Goods तो आपको बनाना है, गुड्स तो मैं बनाऊंगा. बनाए उनके टेक्नोलॉजी को यूज करके. करेक्ट. करेक्ट. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस को नहीं दिया ना आपको, वो जो IPR दिया हो. IPR दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स. In respect of goods. करेक्ट. तो अब इसमें क्या है, इसी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बाहर आ गया. So IP Design also. intellectual Design- property right. अब यही चीज सपोज करिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हमने बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास नो हाउ है, राइट्स है, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रेस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस वाटर बॉटल, इन रेस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट गुड्स. Respecting of That's that particular goods. so Yes. much. Yes, you are not providing information service systems. now ये इट इज सेपरेट हो. अगर हम सपोज वही डिजाइन मेल पर नहीं आकर कस्टम्स के थ्रू आया और मैं क्लियर कराऊं तो गुड्स सही है. तब मेरे को 12% मिलेगा. 12% अभी भी 12% नहीं है. नहीं अभी लेकिन तो आपका तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं हो ना. नहीं मैं तो सर उसका आईपीआर दिया हूं, मेरे को राइट्स मिला है. अंकित, बट वो राइट्स आने के लिए मेरे को वो कुछ डिजाइन्स भेजे थे जो That is कस्टम्स में क्लियर incidental to होकर है. principal supply. That is incidental to principal supply. दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई इनफैक्ट नॉट इंसिडेंटल. मतलब वो उसके साथ एग्रीमेंट जो हुआ उसमें बोला कि हम आपको ये सब देंगे, ये सब देखेंगे, राइट. तो उसके साथ वो डिजाइन ड्राइंग भी भेज रहा है. But the design जो है, that is also in respect of that particular goods. Goods is That design is in respect of a transaction which I want to further manufacture in India if I enter into the that. whole entity जो है in respect of goods transfer of intellectual property rights in respect of goods है, तो whether it's coming through mail or through custom, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So the point is that the entry is IPR in respect of goods, not goods. No. IPR is always intangible. Yes. IPR is generally intangible. It can come through mail. It can come through. What you are getting as a design, that is the integral part of IPR. But sir, IPR generally is a know-how which is तो आज know-how- Coca-Cola के बाद उसकी एक फॉर्मूला जो वो रख के रखा है. वो Right. फॉर्मूला that is its IPR. उसके जो फॉर्मूला वो दे रहा है, उसके साथ में कोई आपको सेपरेट मशीन दे रहा है, या टूल दे रहा है, या डिजाइन दे रहा है, या आप इस मैकेनिज्म से बनाइए. हाँ. That is the integral part of first part, that is the IPR. Correct. यहाँ पे आपको जो सू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अपने यहाँ सप्लाई कर रहा है, ही सप्लाई IPR, Correct. along with the further designs. Correct. तो आपका प्रिंसिपल सप्लाई जो IPR आ रहा है, वो एक सेपरेट एंट्री में यहाँ पे आ रहा है कि बिकॉज़ इट इज अदर देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहले रेट दो काम बनाइए. पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेट अलग था Correct. और गुड्स का रेट अलग गुड्स था. का रेट अलग था. 12 और 18 था, और आज की डेट में ये जो आप जो झगड़ा कर रहे हैं, जो- ये झगड़ा अपडेट करके सीधा 18 आ गया. ठीक. एक ही कर दिया. अभी उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स, Yes. इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस, वो सब उड़ा दिया. सब वो सब खत्म कर दिया. और कोई झगड़ाबाजी नहीं है. Municipal transfer of IPR है. 18% लगाओ. All idea. All idea. All right. All right. Whether it is related to information system, whether it is related to the goods, whether it is related to service, ये बहुत all सारे idea. कॉमन ट्रांजैक्शन आईपीआर के आज के दिन बाहर के नो हाउ Exactly. इज Exactly. अ वेरी कॉमन ट्रांजैक्शन. सर आप जो परेशान किया हो. सर हम तो मेरे पास आया तो हम खुद परेशान थे कि ये ले क्या रहा है. हम तो 4 बार सामने वाले से समझने की कोशिश की भैया आप ले क्या रहे हैं, क्या बनाएंगे ये बताइए. पर वही है, वो भी वो आईपीआर है उसका, वो कैसे सब चीज हमको दे दे. ये भी तो बात. नहीं तो फिर 18% प्रॉब्लम. वो आधा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बट ओपिनियन पूरा चाहिए, तो ओपिनियन पूरा कैसे मिलेगा. ये तो प्रॉब्लम है. वो एडवाइस नो हाउ को शेयर कर लिया, कहीं कहीं फंस जाएगा. कमिंग नेक्स्ट टू द सीरियल नंबर 9989. सर एक चीज मैं यार बताना को भूल गया. जब अपनी सर्विस नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो सर्विस नोटिफिकेशन में सर शेड्यूल नहीं है. ये ध्यान रखना है. सिर्फ गुड्स में 6 शेड्यूल थे, सर्विस नोटिफिकेशन में शेड्यूल नहीं है. सारा एक ही जगह है. 5, 12, 18 में है. इसका रीजन क्या है? इसका खुद का एक अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है और वो कस्टम्स के लिए शेड्यूल 1 2 3 कस्टम्स में तो वो वैट में था सर. वैट से बोला किया बैट में तो शेड्यूल 1 शेड्यूल थे. सही है हमेशा से. यहाँ पे सर इसलिए नहीं क्लेम किया है
सिमिलर आइटम को 5 भी है 12 भी नीचे ऊपर नहीं देगा तो दिक्कत होगी। ट्रांसपोर्टेशन आरसीएम 5 एफसीएम 12 इसलिए ऊपर नीचे डालना है, शेड्यूल नहीं बनाया। अपने रियल स्टेट में आते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सर्विस में कोई रेट बाकी नहीं है, कोई रेट बाकी नहीं, सारा रेट आगे नहीं है, सब आ गए। सिर्फ स्लाइट डिफरेंस के चलते, जैसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 1 भी है 5 भी है विदाउट इनपुट। अब उसमें क्या 45 लाख से नीचे जो अफोर्डेबल हाउसिंग उसमें 1%, नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग 5%, उसमें भी फिर कैच है। कमर्शियल प्रॉपर्टी आरईपी में है या आरईपी में है, ये इसीलिए कंस्ट्रक्शन सर्विस ये जो क्लासिफिकेशन किया गया नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रेट, जैसे कि बुक्स में रेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, इसलिए यहाँ का शेड्यूल नहीं मिल रहा है। तो आपको ये हेडेक नहीं रहेगा, जब भी सर्विस के नोटिफिकेशंस आएंगे वहां पे शेड्यूल से कोई भी चीज जाएगा नहीं और शेड्यूल से कोई चीज आएगा नहीं। इसमें एक चीज है जो डिटेल क्लासिफिकेशन के लिए जो एक स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन देके रखा लास्ट में जो दिया वो बहुत सर्विस में बहुत पंगा दे देता। वो 4 डिजिट और 6 डिजिट होते ही कहानी चेंज हो जाती कहानी चल जाए, है, रेट भी उसके नीचे ऊपर कारण हो जाता है, बट ये शेड्यूल नहीं है। शेड्यूल नहीं। दिस इज माय पॉइंट, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट कर रहा हूं कि ये अपने लोगों को शेड्यूल से क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि सिमिलर सर्विस का 2 रेट अलग रेट, हल्का सा डिफरेंस है क्लास डिस्क्रिप्शन में, उसके चलते रेट डिफरेंस है। जब रेट डिफरेंस हो रहा है तो अगर मान लीजिए सपोज करिए एक सर्विस है जो 5% में भी है और वो 12% में भी है, स्लाइड डिफरेंस के चलते वो 10 पेज के बाद में, तो उसको आप रिकंसिलिएट मतलब कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक साथ डाला हुआ, ठीक है ना। Coming to the next item, that is printing services. All entry was service by way of printing of all goods falling under chapter 48 and 49. ये ध्यान देने की बात है सर। जिस आइटम पे आप प्रिंट कर रहे हैं वो 48 और 49 का चैप्टर होना चाहिए। मतलब अगर पेन में अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो पेन किस चैप्टर में फॉल करता है 96 में, उसके लिए एंट्री नहीं है। जो आइटम आपका 48 49 का है, कार्टन बॉक्स कोरिलेटेड बॉक्स, उस पे अगर आप प्रिंट कर रहे हैं फ्लैश और दिस इज द अंडर चैप्टर 48 49, इसमें जो रेट 12% की थी वो कन्वर्ट हो गई 18%। ये इम्पैक्ट किसको पड़ रहा है, जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में है, ये फ्लैश प्रिंटिंग जो कर रहे हैं या जो प्लास्टिक के कोई आइटम को प्रिंट कर रहे हैं, कोरिलेटेड बॉक्स को जैसे कार्टन वगैरह में प्रिंट कर रहे हैं, उस पे इम्पैक्ट आ रहा है, वो 12 जगह डाला जा रहा है एक तरह से। अंडी जी यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, बहुत लोगों ने रेट का इम्पैक्ट नहीं लिया, पुराने रेट से अभी चला रहे हैं, अब क्या करें? सर वो तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है सामने वाला के साथ, रेट इंक्रीज हुआ, मेरे को पता नहीं था, मैंने नहीं, he is agreed to pay the differential amount. Collection. My question is, what will the procedure? This is one of the practical question. Suppose I have raised 70 invoices in the month of October itself, with the rate of 12%. But after 25th of October, I come to know after this session, no, I want another 18%. answer will depend upon whether you are under e-invoice or not. डेबिट नोट बेच Sir, invoice होने से भी तो same ultimately आपको अल्टीमेटली कमी मिला है। receipt is able to pay you. डिफरेंशियल टैक्स रेट का डिफरेंशियल और सर अगर e-invoice नहीं है तो हम तो, और वेबिल का झमेला नहीं, हम तो उस इनवॉइस को भी चेंज, बिकॉज़ रिटर्न नहीं गई अक्टूबर की। सर invoice change का फॉर्मूला को बंद कर दीजिए, वो ऑप्शन बंद कर दीजिएगा, वो ऑप्शन नहीं वो है। ऑप्शन नहीं है, then debit not we can collect. We are talking about the legal provisions. Yes. आज के डेट में लीगल प्रोविजन क्या है, आप सेक्शन 34 में एक डेबिट नोट डिफरेंशियल अमाउंट का, अब यहाँ एक सेकंड क्वेश्चन आता है, मेरे 70 इनवॉइसेस हैं, सिंगल वेदर आई कैन रेज अ सिंगल डेबिट नोट। सर ये आप पार्टी वाइज कर सकते हैं, पार्टी वाइज कर सकते आपके 70 इनवॉइसेस 10 पार्टी का आपने इशू कर रहा है तो 10 डेबिट नोट आपको देना पड़ेगा पार्टी वाइज। इंडिविजुअल बिल वाइज देने की जरूरत नहीं, कंसोलिडेटेड डेबिट नोट का प्रोविजन सेक्शन 34 में हैं। इस केस में अगर सामने वाला पार्टी बोलता है आप हम तो दे दिए, अब हम नहीं देंगे, जैसे आप प्रोविजन लिए कि हम तो देने रेडी है, झगड़ा हो गया फिर उसके लिए फिर वापस हो गया। ये एप्लीकेबल टैक्सेस लिखा हुआ तो ये तो नहीं अगर वो तो 12 करके रेस कर रही ना, सामने वाला मना भी कर सकता है कि हम नहीं देंगे। आप सिर्फ टैक्स अमाउंट करिएगा ना, इसके अलावा मैं डिस्क्लोज कैसे करूंगा? डेबिट नोट में क्लाइंट उसको पता जीरो लेता नहीं है, रेस कर गवर्नमेंट ये डिपार्टमेंट तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुआ है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। मतलब हम लोग के साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको ना
जबरदस्ती मेरे को उसको टैक्स इनवॉइस में ही मतलब डेबिट नोट रेज हो गया बट मैं जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा। जीएसटीआर 1 में यू कैन नॉट डिस्क्लोज अ डेबिट नोट विदाउट अ टैक्सेबल वैल्यू। पॉइंट जीरो में डालने करते हैं क्या? हाँ सर, पॉइंट जीरो में कुछ भी पैसा डाल ₹1 डाल देते हैं, 1 रुपया डाल देते हैं, टैक्स पूरा ले लेता पर टैक्स ले लेगा, टैक्स पूरा ले लेगा, टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है पर टैक्सेबल वैल्यू ₹1 डालना पड़ेगा। अब नील को ब्लैंक भी कर सकता है, जीरो नहीं कर सकता। जीरो भी नहीं ले सकते बट वो तो गलत है ना, मतलब वो सिस्टमैटिकली गलत है। a point that we can suggest। अल्टीमेटली सीबीएसई का आपका जीएसटी का पोर्टल है, हाँ सर, जीएसटी का अपना पोर्टल है, वहाँ कहीं ना कहीं जुगाड़ करके क्या करते हैं। नहीं पोर्टल पर कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते सर, सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है पोर्टल सही है, पोर्टल पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके लिए अपने और कोई नहीं डिस्कस और डिस्कस तो आपने पोर्टल डिस्कस कर भी नहीं है, आपने उसमें पोर्टल में कैसे सॉल्यूशन हो सकता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये ₹1 वैल्यू डाल करके अपने टैक्स के अमाउंट को डाल करके अपने आगे बढ़ जाएंगे। एक अपने काम बोल रहे हैं पोर्टल सही नहीं है, पोर्टल सही है एकदम। कभी नहीं पोर्टल में कुछ इंप्रूवमेंट आपने सजेस्ट कर सकते हैं। ये पोर्टल इज वर्किंग। अब तो क्या है, वो 1.5 लाख का 1.70 का तो पोर्टल खराब नहीं है उस बेसिस पे। अब 1.70 तक नहीं आता है मैसेज कि इतने आदमी काम कर रहे तो हम आपको नहीं घुसने देंगे। पोर्टल तो सही चल रहा है बट पोर्टल का इनहेरेंट रेस्ट्रिक्शंस कुछ तो है। I will say, अगर if you ask for restriction, just if I interrupt, sir, Yes, please. I was shocked to see day before yesterday, GSTR 1 file shows a credit note. Filed PDF copy में credit note की value आ रही है, number of credit notes भी आ रहा है। Annual return में auto populated में credit note है ही नहीं, वो value नहीं आई। तो मैं बोला भाई क्यों नहीं आई? तो पोर्टल में जाकर उस महीने का GSTR 1 खोले, वो क्रेडिट नोट का डब्बा 0 दिखा। अब now you see this is the portal. I have a file copy with the ARN number showing the credit note and the credit note value. PDF में तो नेट टोटल वैल्यू आएगी सर। हाँ, अब पोर्टल में मैं जाकर उसी महीने का फिर रिटर्न खोला हूँ, वो क्रेडिट नोट का डब्बा 0 है। एक होता ना कि बाहर में वैल्यू नहीं दिखा रही, अंदर जाता है दिखा रही, वो भी देख लिया कि चलो वहां तक भी ठीक था कि चलो अंदर दिखा दे। बट the portal so what I've changed it and in the auto populated GSTR 9 तो होई that value is not coming which is resulting in my reconciliation difference। और उधर मैं एनुअल रिटर्न में जब वो वैल्यू डाल देना हो, वो तो लाल हाईलाइट करेगा, ऑफिसर को बताएगा कि देखो ये खुद से कुछ क्रेडिट नोट डाला ही नहीं होगा ना आपने, डाला ही नहीं होगा पहले सर। फाइल GSTR 1 कॉपी में है वो। आपने डाला नहीं। ये तो ऑफिसर बोल रहा है, आपने डाला नहीं है। ये वो फाइल GSTR 1 ARN जनरेटेड कॉपी में कैसे? सर देखिए, आप जो प्रिंट निकाल के फाइल रजिस्टर वो तो PDF एडिट हाँ, वो तो एडिट करके आप ला सकते हैं। इतना एडिटिंग नहीं होता यार, एकदम वही शेप वही बॉक्स में एकदम। श्याम भाई को रोज सब एडिट कर लिया। वो तो आप ट्रैवल करते करते हम भी तो Coming to the next entry, recreation, culture and sporting services, chapter 996, cell number 34. All entry was service by way of admission to amusement park, including theme park, water park, joy rides, merry-go-round, go-karting and ballet. Third entry was, all entry was like this: service by way of admission to entertainment events or access to amusement facility, including casinos, race club, and sporting events such as Indian Premier League and like। अब सर आजकल तो फुटबॉल के, बैडमिंटन के सबके होते हैं, एग्जांपल खाली IPL का है। IPL का ही है। And like पैसा तो उसी में। ये शाम सब सुनना चाहिए। ये दो इंट्री डिफरेंट इंट्री थी, वन वाज 18% 28%। अब इसमें जो चेंजेस आए हैं वो सिंपली कैसीनो और रेस क्लब की जहां फैसिलिटीज हैं, और आप सिर्फ रेस क्लब और कैसीनो में अगर एंट्री करते हैं वो 28 में रहेगा, बाकी सारे 18 में रह जाएगा। मींस अगर कैसीनो निको पार्क में अगर खुल जाता है तो वहां 18 होगा, सब्जेक्ट ऑफ कैसीनो की एंट्री की रेट साथ में मिल जाएगा। वहां अगर आप जैसे पहले क्या था कि अगर वहां कैसीनो है तो पूरा 28 चला जाएगा। अब डिफरेंस क्या हो गया, कैसीनो है लेकिन जो टिकट दे रहे हैं उस टिकट में आपको कैसीनो एंट्री नहीं मिल रहा है। नॉर्मल है। ओनली एम्यूजमेंट पार्क में, वाटर पार्क में, थीम पार्क में, गो कार्टिंग में आप खरीद कर चले आइए तो 18। ये क्या होगा, लॉजिकल है। उसमें एक मेरा इंटरप्रिटेशन है उस एंट्री में कि आप उसमें क्या है ना, पहले 28 में बहुत सारे चीज आ जा रहे थे। सपोज कोई क्लब में 25 दिसंबर का इवेंट हुआ और उसका प्राइस रखा गया ₹1000 एंट्री टिकट, तो वो 25 दिसंबर का जो इवेंट हुआ उसको आप क्या बोलेंगे, एंटरटेनमेंट इवेंट बोलेंगे। 500 से ऊपर है तो टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन में नहीं है।
तो वो भी 28 में फॉलो हो रहा था पहले पहले। अभी नहीं। अब कैसीनो और रेस क्लब आईपीएल के 3 या कोई स्पोर्टिंग इवेंट होना चाहिए। सिमिलर टाइप करेक्ट। तो जो आप इवेंट्स 25 तारीख को आईपीएल करवाएंगे तो 28 में चला जाएगा। 25 को तो क्रिसमस ईव जैसे होता है जो भी, उस पर पहले जो 28 लग रहा था वो 18 में। 18 लगेगा। करेक्ट, ये मैं डिफरेंस बताया दोनों में कि वहां पे रेस इसका एडवर्टाइजमेंट में दिस कैसीनो रेस क्लब या सिमिलर स्पोर्टिंग इवेंट लाइक आईपीएल का जैसा कोई इवेंट है तो वो फैसिलिटी आप एंजॉय करेंगे तो 28 है। अगर मैं एक ही प्राइस ले रहा हूँ, मैं अलग से टिकट का प्राइस नहीं रखा, तब 28 चला जाएगा। तब हमको हाईएस्ट रेट ही देना तब पड़ेगा। 28 चला जाएगा। मतलब वो मिक्स सप्लाई में ये चलेगा। सब प्राइस चला जाएगा। डिफरेंस क्या हुआ, इससे मैं निको पार्क का एग्जांपल लिया। निको पार्क में जैसे मान लीजिए वाटर पार्क तो चल नहीं रहा है गर्मी के चलते, उसमें हमने कैसीनो खोल दिया। करेक्ट। मैं 100 रुपए की एंट्री दिया, 100 रुपए की एंट्री में कैसीनो के लिए एंट्री है और निको पार्क की एंट्री 28 देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 80 रुपया का एंट्री देता हूँ फॉर थीम पार्क नॉट फॉर द कैसीनो और 100 रुपीज की एंट्री सेपरेट टिकट कर देता हूँ, क्या होगा दोनों जगह जाएंगे। तो पहले वाले में 28, सेकंड वाले में 18। एक ही टिकट में 80 प्लस 30 सेपरेट कर देंगे। तब सेपरेट 28 20 तो लाइन आइटम कर गया 20 की ना कैसीनो 20 पे 28 और 80 पे इधर। पर मैं तो आपसे एक बार में 100 रुपया ले रहा हूँ, विल नॉट इट बी मिक्स सब सप्लाई। पेमेंट 100 रुपए करते हैं लेकिन मिक्स सप्लाई का तो सिंगल प्राइस होता, यहाँ तो प्राइस आपका डबल है। मैं डिस्क्लोज लाइन आइटम्स अलग अलग होते हैं। लाइन आइटम अलग हो गया। Carbonated so get carbonated drinks and biscuit separately. तो उनको टेंशन हो रहा है जो भी आप बिल्कुल करें। मैं पूछ रहा हूँ इसमें सर्विसेज बाय ऑफ एडमिशन टू कैसीनोज और रेस क्लब्स ये एक पार्ट हो गया, और एनी प्लेस हैविंग कैसीनोज और रेस क्लब्स। तो कोई जगह है जहाँ कैसीनो रेस क्लब है अदर देन अदर फैसिलिटीज, तो उसमें क्या अपने बाइफर्केशन करेंगे या स्टेट 28 चलेगा? स्टेट 28 चला जाएगा। वही स्टेट बता में रहे देखिए हैं, वही निको पार्क नंबर 10 में दिया हुआ उसको क्लैरिफाई किया है। अगर आप सिंगल प्राइसिंग करते हैं एंड देयर इज अ ऑप्शन देयर इज अ फैसिलिटी दैट यू विल एंजॉय यू कैन एंजॉय द बाय पेइंग इज 100 रुपीस स्टेट और 20। आप गए या नहीं है मतलब नहीं, आप 100 रुपए का चीज के लिए केस आपका Composite. एग्जांपल दिया 100 रुपए का टिकट, वहां पे कैसीनो भी है, वाटर पार्क कन्वर्ट हो गया कैसीनो में, और इधर में आपका थीम पार्क भी है। 100 लिए आप थीम पार्क ही खरीद गए, कैसीनो नहीं गए, लेकिन 100 रुपए में कैसीनो के एक्सेस राइट आपके पास अवेलेबल है तो 28 चला जाएगा। मतलब अगर एक जगह है जिसमें मेरे पास वो ऑप्शन, मैं खाली पॉइंट क्या है कि मेरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे को। मैं पॉइंट है कि मेरे पास वो ऑप्शन क्या है। देखिए नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एंट्री नंबर 34 Roman 3 notification number 11 by so prior to 1/10/21 prescribe 18% of GST on services by way of admission to amusement park including theme park, water park, joy rides, merry-go-round, go-karting and valet. On the other hand, entry number 34 in the notification number 11 so prescribe 28% on services by way of admission to entertainment events और एक्सेस टू एवेन्यू पार्क इंक्लूडिंग कैसीनो रेस क्लब। ये पहले दो एंट्री अलग अलग थी, यहाँ पे कंबाइन का ऑप्शन नहीं दिया था पहले। एकदम सही। तो उस केस में क्या होता था कि ये झगड़ा था कि भैया जो आप कैसीनो वहां पे मैं क्या करूं जहाँ पे दोनों हैं, ये वहां पे 28 की रेट चली जा रही थी। यहाँ पे फर्दर क्लियरली कर रहे हैं पैराग्राफ 10.3 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इट इज क्लियरिफाइड दैट 28% rate apply on admission to a place having casino or race club even it provides certain other activities or admission to a sporting like IPL means अगर आप 100 रुपया लेकर के कैसीनो एक्सेस करने उसको दे दे रहे हैं, राइट मिल रहा है उसको एक्सेस करने, करे नहीं करे उसकी प्रॉब्लम, वहाँ कैसीनो है फैसिलिटी है तो आप 28% चले जाएंगे। सर जो डीएस सर भी वही बोलना चाह रहे हैं, जो व्हाट आई अंडरस्टूड इज जो बाइफर्केशन का अपने बात कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से इस एंट्री में क्या चेंज किया गया कि जो अम्यूजमेंट पार्क को 28 में डाल दिया गया था, उसको हटा दिया गया, उसको 18 में डाल दिया गया, उसको 18 में ला दिया गया। पहली एंट्री क्या थी, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट और एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैसीनो। तो जो एंटरटेनमेंट इवेंट हो रहा था ना, जैसे जो मैं एग्जांपल दिया 25 दिसंबर 31 दिसंबर और एनी होली मीट, दिवाली मीट, थिंग्स लाइक दैट, उस पर 28 लग रहा था। अब वो चला गया 18 में। अब 28 में सिर्फ यही रख दिया गया, अगर आप कसिनो में जाएंगे, एक जगह में जाएंगे जहाँ कसिनो है, आप यूज करिए ना करिए मतलब नहीं है। अगर उसकी एंट्री फी सपोज 500 रुपया, आपको 28,500 पे देना, वेदर यू एंजॉय कसिनो और यू एंजॉय एनी अदर फैसिलिटी। 500 has the right to enjoy the casino. You have the right. You are going or not, that is all to do with सर
But the question is, if the place has casino and other facility, whether I can bifurcate prices of casino separately and Yes, that? yes, I can do. I think my view on this, yes sir, your view? My, because what is the entry sir? मतलब एक बार अपने पढ़ते हैं उसको 34(3) उसमें क्या किया गया? Admission to a place having casino or race club ये बोला गया, और admission to sporting event like IPL. और क्लैरिफिकेशन में बोला गया ब्रैकेट में इवन इफ इट प्रोवाइड सर्टेन अदर एक्टिविटी, तो आपको 28 ही देना है. सो आई कैन नॉट डू द बाइफरकेशन इन दैट केस. सर ये तो इसलिए तो उस केस में ना जहाँ पे सिंगल एंट्री है, लेकिन जहाँ पे मेरे प्राइस डिफरेंट है कि भाई सर तभी भी बट नोटिफिकेशन तो क्या बोल दिया था, वो जगह में कैसीनो है और आप उसको यूज करिए ना करिए, प्राइस के बारे में तो बोला ही नहीं. इट हैज ब्रॉट द लेवी वेयर देयर इज अ कैसीनो. that means you mean to say Yes. यहाँ कैसीनो है वहाँ है ही करना है. वहाँ 28 करना है. एडमिशन टू सिर्फ अम्यूजमेंट, सिर्फ एंटरटेनमेंट इवेंट का जो रेट है वो 28 से 18 की है. नोटिफिकेशन में क्या लिखा है देखिए, हाँ सर. मैं आई एम रीडिंग आउट 10.3 10.3 having a rate of 18% covers all other cases of admission to amusement park or theme park etc. or any place having joy rides, merry-go-round, go-karting and whether indoor and outdoor, so long as no access is provided to the casino or race club. That means वहाँ है नहीं, access right नहीं है तो ना. और सर एंट्री आया नोटिफिकेशन में, उसमें ये बात नहीं लिखा. बस एक क्लैरिफिकेशन से बोला ना. मतलब आप बोलना चाह रहे हैं इसमें टैक्स प्लानिंग ये हो सकता है कि आपके जगह दोनों चीज है, कैसीनो के साथ और भी कुछ है. आप कैसीनो का एक रेट अलग कर दीजिए और अलग का एक अलग कर दीजिए, एक पर 18 दीजिए, एक पर जो बिल इशू होगा लाइन आइटम अलग कर देगा तो दोनों में अलग 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 कर देगा तो ये हो दोनों में. क्योंकि यहाँ पे जब ये बोल रहा है तो एक्सेस दैट मींस कि देयर इज अ प्रोविजन बट यू डोंट हैव द एक्सेस. बट 10.3 का सेकंड लाइन बोलता है इट इज क्वालिफाइड एट 28% अप्लाई टू एडमिशन टू अ प्लेस हैविंग कैसीनो. इट डज नॉट से टू अ कैसीनो, इट सेज टू अ प्लेस हैविंग कैसीनो ब्रैकेट इवन इफ इट प्रोवाइड्स सर्टेन अदर एक्टिविटी. ये सर जो 10.3 में कंफ्यूजन क्रिएट करती है. 10.3 गलत है सर, नोटिफिकेशन बट यहाँ इसमें जो ये लाइन मेल कर रहा है ना, सो लॉन्ग एज नो एक्सेस इज प्रोवाइडेड इन कैसीनो रेस क्लब, ये मीनिंग क्या होगा? सेकंड लाइन इसी तो में उल्टा कंफ्यूजन बोल हो रहा है ना सर, इसी का सेकंड. इसलिए तो दिमाग में ये आ रहा है कि दैट मींस हमारे पास में दोनों फैसिलिटी है Sir, एंड आई एम रिस्ट्रिक्टिंग यू टू एक्सेस द कैसीनो रेस क्लब. तो मेरा No, फर्क sir, है. but I would like to लेकिन जो नोटिफिकेशन की जो पहला दो लैंग्वेज लाइन है, देखिए. ये जो लैंग्वेज है नोटिफिकेशन की और जो सर्कुलर है वो सर बट सर्कुलर भी वो चीज नहीं बोल रहा है फ्रॉम माय व्यू, बिकॉज आपकी 28 की रेट की क्लैरिफिकेशन है. 28 की रेट कब लगेगी वो पहला दो लाइन में लिखा है. नीचे वाला रेट बोला 18 के लिए, नीचे वाला जो आप लाइन पढ़े 10.3 फर्स्ट two lines if we read on the recommendation of council it is clarified that 28% rate applies on admission to a place underline having a casino or race club bracket even if it provides certain other activities. तो 28 का क्लैरिफिकेशन क्या बोला? having a place to a place having casino. अब देखिए इसको 10.3 को अगर ब्रेक करके पढ़ते हैं दो लाइन में, दो देखिए एक फुल स्टॉप के बाद में अलग दूसरा सेंटेंस चालू है. On the other hand को अलग कर दीजिए. ठीक है ना, वो अलग कर दिए. हाँ. पहला क्या बोल रहा है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इट इज क्लैरिफाइड दैट 28% एंट्री नंबर 34 ब्रैकेट 3A अप्लाई ऑन एडमिशन टू अ प्लेस हैविंग कैसीनो और रेस क्लब. To a place having casino or race. स्टॉप. यहाँ पे दैट मींस अगर मैं जो एग्जांपल लिया हूं निको पार्क का उसको कंटिन्यू करते हैं. अपना जो वाटर पार्क का जो एरिया है वो कैसीनो का एरिया है और जो थीम पार्क है अपना बच्चा जहाँ पे घूमता है वो एक एरिया है. मैं 3 तरह के टिकट इशू कर सकता हूँ. टिकट नंबर 1 100 रुपया दीजिए, दोनों जगह जा सकते हैं. टिकट नंबर 2 80 रुपीज दीजिए, सिर्फ थीम पार्क जाएंगे. टिकट नंबर 3 20 रुपया दीजिए, कैसीनो का एंट्री और मिल जाएगा आपको अलग से. Sir, to a place having casino. Place is entire Nico Park. You cannot say place to be Nico Park Casino, Nico Park Theme Park, Nico Park both. Place is a wider word, no? Place would cover the entire gamut, I believe. ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. क्लैरिफिकेशन ये प्रूफ हो गया कि क्लैरिफिकेशन से कंफ्यूजन आता है. Correct. जो ऑब्जेक्टिव था. अंकित इसमें इशू क्या है कि जो 34.3 की जब बात करो ना, पहला वाला पॉइंट तो सही है पूरे प्लेस के हिसाब से. पर वो नीचे वाला भी बोल दिया whether or not. सेकंड पे नहीं अब 34.3 में क्या है
NT 34.3 having a rate of 18% covering all other cases of admission to amusement parks. Correct. अब जैसे विकास बोला न्यूको पार्क की बात कर रहे हैं, So long as no excess. हाँ। ये लाइन गलत है सर। यही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ amusement वहाँ पर amusement पहले में जब वो बोल दिए कि to a place, लिखा हुआ तो लिखा हुआ पढ़ेंगे ना। अब जगह से एक पूरा place है। अच्छा, इसको इस तरह तो से जगह जो है उसमें exemption amusement दिया नीचे। park न्यूको पार्क इज आल्सो प्लेस जहाँ पर कैसीनो है, राइट? Correct. तो ये तो कंट्राडिक्टरी दोनों जो ये दोनों ये 10.3 दोनों itself is self control। दोनों लाइन सेल्फ कंट्रोल। मतलब मैं जब ये नोटिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, जो लिखा हुआ उसको हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो नोटिफिकेशन पढ़ रहे जो काम मेरा वो कौन लेना पड़ेगा? जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ा था तो इंटरप्रिटेशन interpretation ये आ रहा था वाला कि जो एंटरटेनमेंट इवेंट को 28 में टैक्स किया जा रहा था उसको 18 कर दिया गया, बिकॉज कसिनो तो हमेशा 28 में ही था। सो दैट वाज द इंटरप्रिटेशन कमिंग, बट अभी आपका इंटरप्रिटेशन सुनकर फिर वापस से इसलिए पढ़कर लग रहा है कि 10.3 कंफ्यूजन सेल्फ जो कंट्रोल। बाद में जो लिखा ना तो जो पहले बोल दिया एनी प्लेस, बाकी जो लाइन Application से एकदम clear था जो अभी बोल रहे हैं। एकदम बोल रहे हो लेकिन बाद में जब ये पढ़ रहे ऑन अदर प्लेस जो बोल रहा है तब मेरे को लग रहा है कि भाई दैट मींस कि आई मस्ट हैव द राइट टू एक्सेस इन द कैसीनो देन ओनली आई हैव टू पे 28%। तो आगे If I don't have the right then I have to go for 18%। अच्छा, इसके वो ठीक हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, लेकिन वो अम्यूजमेंट पार्क भी तो प्लेस है। हाँ अच्छा, इसमें अगर भैया एक लाइन, अगर दोनों का एंट्री अलग कर दे, एंट्री अलग है। हम प्लेस एक है लेकिन एंट्री हम वो 100 रुपए का टिकट नहीं दे रहे, हम 80 का अलग टिकट काउंटर दे रहे हैं, 20 का अलग You काउंटर। cannot brand yourself as Nico Park only. You have to brand yourself as Nico Park Casino. Like this, तो प्लेस वाइज या कंट्री वाइज हो जाएगा। identity तो अलग है। नाम निको पार्क दोनों का रख दिया तो वो ठीक है आप कुछ भी रखेंगे आइडेंटिटी दोनों का अलग अगर पैन अगर मान लीजिए एक ही एसएससी वो दोनों टिकट इश्यू कर रहा है तब हाँ उससे फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ तो अभी सर्विस जो प्रोवाइड हो रहा ना टैक्सेशन तो सर्विस पे एसएससी में नहीं है। यहाँ रेट नोटिफिकेशन में ठीक हुआ था, क्लैरिफिकेशन से आकर उसको और कंफ्यूजन। किया, तो मतलब आपने जो स्टार्ट में बात कर रहे थे क्लैरिफिकेशन वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। भैया हम लोग गलत पढ़ा है। हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ये जो बोल रहा है ना गलत पढ़ाया है, तुम्हें बिल्कुल सही बोल रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट किया था तो प्रूव कर रहे थे उसको। Now, this meeting is now I think 20-25 minutes more ना। 20 मिनट्स। Interesting point एक है अपने बच्चे में regarding the certain clarification by circular number 164. Clarification regarding applicable GST related exemption on certain service. उसमें मेरे total 9 clarifications आए हैं, out of these I find 3 or 4 are more important and having the discussion on the point. पहला जो पॉइंट अपने पास अभी मतलब अपने वी प्रोफेशनल्स आर फेसिंग रिगार्डिंग द आइसक्रीम। अंकित से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऐसा कि अभी जो आइसक्रीम का चीज अगर ये सॉल्व कर देगा तो मैं पार्टी दूंगा, अगर नहीं सॉल्व करेगा तो आइसक्रीम की पार्टी ये देगा। You please take a note of it. एग्रीड सर। अभी उनके शामिल है ना। अपने को दोनों कैसे पार्टी मिलेगा? Party is always a collective. Isolation में party नहीं होती। नहीं इसमें यदि सॉल्व नहीं हुआ तो मैं पार्टी देगा। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रहा तो सर इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि फिजिकल मीटिंग किया जाए। हाइब्रिड में तो वो फोटो दिखा देंगे। सर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे अगर जो 10.3 का जो डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग द मिसमैच बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर इटसेल्फ, सेम यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। अपने जो सर्कुलर 164 है इसका पैरा नंबर 3 एंड पैरा नंबर 4 दोनों को कंबाइन करके पढ़िएगा। सर्कुलर नंबर 164 का पैरा नंबर 3 एंड पैरा नंबर 4 दोनों को कंबाइन करके पढ़िएगा। पैरा नंबर 4 क्या बोलता है, जस्ट रीडिंग आउट आउट, this is relating to the clarification in service by cloud kitchen and central kitchens। यहाँ क्लैरिफिकेशन क्या आया है कि कोई भी क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन से सर्विस प्रोवाइड की जाती है, रेस्टोरेंट सर्विस की, अपने वहां से ऑनलाइन मंगा लिए, तो ऑल दीज आइटम्स आर एज गुड एज रेस्टोरेंट सर्विस एंड यू विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम कंफर्टेबल हैं, इट इज लुकिंग गुड। ठीक है, क्लाउड किचन में भी अपने रेस्टोरेंट सर्विस की अपनी बात करते हैं तो व्हाट कम्स टू इन आवर माइंड दैट रेस्टोरेंट सर्विस या ईटिंग जॉइंट या मेस या कैंटीन इट हैज अ फिजिकल प्रेजेंस। ये अपने जा रहे हैं, खड़े होकर खा रहे हैं, कुछ क्या खा रहे हैं, रखा में तो कुछ आ रही है तो वो भी अपने कैंटीन रेस्टोरेंट सर्विस में आता है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ, बरखा मैडम कुछ का खा लिया तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काम आएगा आगे। ये लिटिगेशन में ये बोल रहा जो खा रही है फुचका समझ के खाओ, फुचका समझ के खा रहे हैं। अब ये जो फुचका जो आप खा रहे हैं मैडम, वेदर दिस कवर्स अंडर द रेस्टोरेंट सर्विस और नॉट,
क्योंकि जब रेस्टोरेंट सर्विस जो डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं वो क्या लिखता है, आई एम रीडिंग इट आउट। रेस्टोरेंट सर्विस means supply by way or as a part of any service of goods, means कि goods के साथ में सर्विस कंपोनेंट तो आना ही होगा। फर्स्ट कैच। सेकंड कैच, being food or any other article for human consumption, फूड होना होगा और any article other than food। अभी any article other than food जब हम बात करते हैं, that means it is mainly a juice, it may be other item which is not a food। फूड की जो डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में आई है, which has a nutritious value, right? Like अपने कुछ भी रोटी सब्जी दाल, all these are foods, and other item यहाँ कवर कर रहा है which is open one। और खाने पीने का सारा सामान, अपने अगर नक्शे में बात करें, खाने पीने का सारा सामान सब गुड्स, खाने पीने का सामान हो गया, उसके साथ में कुछ सर्विस आ रही है। तो ये सर्विस किस फॉर्म में आएगी? इसकी सर्विस किस फॉर्म में आएगी सर? आपको मैं सर्व कर रहा हूँ ऑन प्लेट विथ सम प्लेटर्स और एडिंग समथिंग इन द पर्टिकुलर फूड। रेस्टोरेंट में एसी मिल रही है, पंखा मिल रहा है, बैठने की जगह मिल रही है, वेटर आके सर्व कर रहा है, प्लेट उठा के ले जा रहा है। ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ द सर्विस व्हिच इज इंक्लूडेड विद द गुड, दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विसेज। Further provided by the restaurant, eating joint including meals, canteen। सर ना तो रेस्टोरेंट को डिफाइन किया गया, ना ईटिंग जॉइंट को डिफाइन किया गया, ना मेस को डिफाइन किया गया, ना कैंटीन को डिफाइन किया गया। इन दैट केस वी विल टेक ए नॉर्मल नोमेनक्लेचर ओवर हियर। अपने अगर ईटिंग जॉइंट देखते हैं, ईटिंग जॉइंट मींस खड़े होकर खाने की जगह मिल रही, दैट इज ईटिंग जॉइंट। तो अगर फिर वापस पीछे बैठ जाता हूं, मीन्स इन बरखा मैडम फुचका खा रही हैं, खड़ी होकर खा रही हैं, खा के चली गई हैं, इसलिए शी हैज टेकन द रेस्टोरेंट सर्विस अंडर द जीएसटी। अब उसका रेट क्या है? रेट 5% है। फिजिकल मोड चेंज करते हैं थोड़ा, चेंज क्या होगा? चेंज करके मैडम ने क्या किया? ऑनलाइन मंगा लिया, खड़े होकर खाएंगे, क्लाउड किचन से माल आ गया। इसकी इसमें क्या 18% लगेगा? ना वो ईटिंग जॉइंट में खाएं, ना मेस में खाएं, ना कैंटीन में, घर मंगा के खाएं। तो सर टेक अवे आल्सो कमिंग इन द क्लाउड किचन, ordering through the cloud kitchen is only a mechanism of having the service through the internet। जब जीएसटी आया था ना, उस समय एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि आप कोई एक स्वीट ले रहे हैं रेस्टोरेंट से, टेक अवे करेंगे तो अलग रेट है, खाएंगे तो अलग रेट है। तब अब क्या हुआ कि आप बिल बनाने से पहले उसके पीछे से घूमिए, वो खा लिया घर लेके जाना है। क्योंकि ऐसा भी तो कर सकता ना कि वो बोला कि सर हम तो खा लेंगे यहाँ पर बैठ के, और लेके चला गया, तो उसको तो हरम जाना चाहिए था। तो ना, जब तक दुकान से बाहर नहीं निकलेगा बिल नहीं बनाएंगे दुकान से। तो उसको लिमिट किया कि नहीं, इस तरह का नहीं करना है। टेक अवे अगर है तो 5% से आ जाएगा, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इट इज अ मीडिया ऑफ टेक अवे, करेक्ट? अब मजे में देखिए, ये तो बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन है कि भाई अगर कई तरह की एम्बिग्युइटी है तो 5% में आता है। Now coming to the para number 4. Before that, I am reading out 3.3 as a clarification. 3.3 में clarification क्या आ रहा है? The explanatory notes to the classification of service state that restaurant service includes services provided by restaurant, cafe, and similar eating joints, including takeaway services from service and door delivery of the food. यहाँ तक हम comfortable हैं, यहाँ कोई changes नहीं था। अब जो line ऐड किया है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यहाँ क्या बोलता है? Therefore, it is clear that takeaway services and door delivery services for consumption of foods are also considered as a restaurant service, and accordingly, service by the entity while they are cooking and supply of food, even if exclusively while they are takeaway and door delivery, blah blah blah। ये जो कुकिंग वर्ड डाल दिया ना, ये हमको पिनपॉइंट कर रहा है, ये मेरे को पिनपॉइंट कर रहा है। Does it means that cooking means what? Cooking means you have to have some flame, heat करना होगा, तब तो कुकिंग हुआ ना। अपने सलाद खाते हैं, सलाद को हीट करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज cannot be called as a freezing of the article, it cannot be comes under the cooking। Am I right? जब कुकिंग की बात कर रहे हैं तो उनको तो पकाना पड़ेगा ना,
क्योंकि अपने अपने जो उसके जब लिटिल मीटिंग में जा रहे हैं तो कुछ का तो पकाया नहीं गया आपके सामने, घर से तो पका के लाया है। घर से पका के लाया, तो घर तो उसका रेस्टोरेंट नहीं था। यहाँ तो वो यहाँ पे जो काउंटर पे सेल आउट कर रहा है, मैं क्यों ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो आइसक्रीम के बाद डील करेंगे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको। टेक्निकली देखिए मैडम ने क्या कहा, घर से वो पका के लाया, मतलब कुकिंग वहां से करके लाया, कहीं से भी कुकिंग करके लाया है, इट इज एज गुड एज कुकिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुकिंग वर्ड है, ये कहीं भी रेस्टोरेंट सर्विस में लिखा होगा, तो सलाद काट के हम देते हैं, तो क्या ये मेरे रेस्टोरेंट सर्विस में नहीं आएगा, ये दूसरे आएंगे, कुकिंग तो हुआ नहीं, ये अननेसेसरी का वर्ड आगे के कन्वर्जन क्रिएट हो रहा है। नाउ although it is clarified that cloud kitchen and central kitchen all are coming under the 5%. Coming to item number 4, that is the subject matter of ice cream. ये क्या बोल रहा है, आइसक्रीम पार्लर सेल्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम, अपने रॉडी पे जाइए, नेचुरल में जाइए, पबराई में जाइए, कहीं भी जाइए, वो रेडीमेड आइसक्रीम बेच रहा है, मैन्युफैक्चर करके वहां पे आया हुआ, एंड दे डू नॉट हैव एनी कैरेक्टर ऑफ रेस्टोरेंट, they do not have any character of restaurant, but whether it is losing the color of eating jet, no, it has the color of eating jet. वो सर्व कर रहा है आपको, ऐसा तो नहीं है आइसक्रीम मांगे ऐसे पकड़ा, तो रास्ता ठेला वाला भी सर कुछ खोल के तो देता ही है खाने के लिए, वो यूज की सर्विस है, नहीं दे सकता आपको, एक पीस दे रहा है, जो वो सब्जेक्ट मैटर है, आपको खड़ा होकर खाने भी बना नहीं कर रहा, खड़ा होकर खा लीजिए वहां पे, उसका जब खा रहे हैं मैडम, ऐसा थोड़ी है कि वहां पे टेक अवे भी तो इंक्लूडेड है ना, जब लेके जाएंगे तो फिर तो पीछे की सड़क जाएगा, यही खाइए, मैं तो 5 लेके जाएगा तो खा ये तो नहीं हो सकता ना, आप किस चीज पे टैक्स लगा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसका नाम ठीक है, उसका नाम नहीं है, उसका नाम ये रोड से कुछ का नहीं खा रही है, ये रोड वाटर कंपनी है, वाटर प्राइवेट लिमिटेड से खा रही है, ये तो शान की बात कर रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगता है, वाटर प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी का नाम, जसपाल भट्टी लिस्टेड कंपनी है। कमिंग टू द एग्जांपल, आइसक्रीम में क्या लिख रहा है, आइसक्रीम पार्लर डू नॉट इंगेज एनी फॉर्म ऑफ कुकिंग एट एनी स्टेज, it is not mandatory at all to qualify as a restaurant services. कुकिंग कहीं नहीं बोला सर, रेस्टोरेंट सर्विस की कुकिंग होना पड़ेगा, ये अननेसेसरी पैरा नंबर 3.3 पे डाला गया है, जबकि जो ओरिजिनल जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है वहां कुकिंग की कोई बात नहीं है, अब उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। नेक्स्ट, involve the aspects of cooking, preparing during the course of providing services. Thus, supply of ice cream parlor stands on a different footing than restaurant services. Their activity entails supply of ice cream or as goods and not as a service, even if certain ingredients of service are purchased. Again, override हो रहा है। सर, संडे आइसक्रीम बहुत फेमस है, संदीप भैया भाभी के साथ में बहुत बार गए हैं वहां पे। संडे आइसक्रीम फेमस है, कहाँ की? बाबू संदीप भैया जहाँ गए हैं वहाँ की बाबू संडे आइसक्रीम वहाँ कैसे सर्व करता है, इसको कैसे सर्व करता है, चार इसको along with cherry and ingredients, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट बिस्किट्स थोड़ा सा देता है, क्या वो सर्विस नहीं है? वहां तो कुकिंग नहीं हुआ है, तो क्या वो उसको ठाड़े लगाना है? नहीं बोला ना, सर्टेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सर्विसेज अवेलेबल, मतलब वो बोल रहा होते हुए भी हम आपको बोलते हैं आप ज्यादा टैक्स, सिंपल मतलब क्लैरिफिकेशन यही बोला कि हम मानते हैं the more the better। मुझे एक चीज समझ नहीं आई यहाँ पे कि वो जो कुकिंग का बोला उसके, अच्छा 4.3 जब पढ़ोगे तब बात करेंगे। हाँ, वहां पे यहाँ पे जब उसको बाइफरकेट कर रहा है, तो दैट मींस this rate of 18% is applicable only in case of आइसक्रीम पार्लर। रेस्टोरेंट सर्विस को यहाँ अगेन उसको आउट नहीं किया, आप बारबेक्यू जाइए वहां आइसक्रीम खाइए तो 5 लगना है, लेकिन वही आइसक्रीम आप अगर पकड़े और संडे आप नेचुरल से खा रहे हैं तो 18 लगा है। दे आर सेइंग इट इज क्लासिफाइड अंडर द HSN कोड 2105, वो गुड्स में आ रहा है, सर्विस में नहीं आ रहा। बारबेक्यू में जाओगे ना, मतलब आइसक्रीम यही खा लीजिए, नेचुरल में जाके फायदा नहीं, नेचुरल में फायदा नहीं क्योंकि हम 8% नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू पैराग्राफ 4.3, accordingly a recommendation by the council, it is clarified that
where ice cream parlors sales already manufactured ice cream and do not cook public prepare ice cream for consumption like a restaurant. It is supply of ice cream as goods and not a service. Even if the supply has certain ingredients of service, accordingly, it is clarified that ice cream sold by a parlor or any similar outlet would attract GST at the rate of 18%. My point is there is no different classification given in rate notification that is 11/2007 itself. And through the clarification, you cannot create a separate entry by your own. कि भाई पार्लर बेचेगा तो 18, पार्लर नहीं बेचेगा आइटम सेम है, पार्लर नहीं बेचेगा तो 5. ये अगर आपको करना है तो नोटिफिकेशन से. सर ये this clarification then should have been brought in goods clarification. सर्विस में लाया क्यों? आइसक्रीम में तो वो बोलता 18% तो कहीं तो लेके आया. सर्विस के पेटे बोल रहा है कि इस आइसक्रीम का एक टैरिफ है जो 18 बोलता है उसके पेटे बोल रहा है. एक्चुअल में जो आप बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए, लेकिन हम लोग उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहे. डिस्प्यूट में नहीं जा रहे हैं, बट लेकिन आइसक्रीम को कुक करना पड़ता है क्या? नहीं, वो लिखा है वहाँ पे. यही तो बोल रहा हूँ मैं. नहीं वो यहाँ पब्लिक कर रहा है. वो ठीक है, लेकिन पहले कुक करने बोल रहा है ना. नहीं दूध को हीट करना है. दूध को हीट करके दूध को हीट करना है. उस हिसाब से कुकिंग प्रोसेस कंडेंसेशन करना और हीटिंग करना. दिस कुक दे आर सेइंग एट द पार्लर नो कुकिंग इज डन. ये वो नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं आप तो प्री मैन्युफैक्चर ला रहे हैं, पार्लर पर आप पका नहीं रहे. अब आप वही सपोज वही आइसक्रीम पार्लर वॉफल बेचेगा, अब वॉफल को तो उसको बनाना पड़ रहा है, तो वॉफल पर वो क्या रेस्टोरेंट सर्विस होकर 5 देगा और उसके ऊपर एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम भी देगा. गरम वॉफल के ब्राउनी, हॉट ब्राउनी, लेकिन वहां विद आइसक्रीम आप ये वनीला आइसक्रीम. आई गिव एन एग्जांपल इन आइसक्रीम पार्लर लाइक बास्किन रॉबिन. सर एक बास्किन पहले तो बहुत से एग्जांपल दिया. सर एक बार वॉफल छोड़ देते हैं, एक बार ब्राउनी विद आइसक्रीम में आते हैं. बास्किन रॉबिन ओनली एन आइसक्रीम पार्लर, उसका आइस ब्राउनी भी है, ओवन में आपके सामने गर्म करता है और उसके ऊपर आपको बोलता है आपको कौन सा आइसक्रीम वेनिला चाहिए तो लीजिए एक स्कूप वेनिला, टोटल मिलाकर आपसे 150 रुपया लिए. अब वो क्या बोलेगा? वो आइसक्रीम पार्लर है, आइसक्रीम भी दिया, ब्राउनी को गर्म कर भी दिया, तो क्या रेस्टोरेंट सर्विस हुआ कि वो पहले प्रिंसिपल सप्लाई क्या है उसमें? आइसक्रीम है या ब्राउनी है? ब्राउनी विद आइसक्रीम है. जो प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा? सर वो आइटम का नाम ही है ब्राउनी विद आइसक्रीम. तो आप पहले आइसक्रीम डाल रहा है कि पहले ब्राउनी डाल रहा है? वो इंपॉर्टेंट क्या है? सर एक को फ्रिज से निकाला, एक को ओवन से निकाला, अल्टीमेटली दोनों एक साथ ही ब्राउनी ये डिफरेंट आइटम क्रिएट हो गए. ये आइसक्रीम भी नहीं रहा, प्योर ब्राउनी भी नहीं रहा. करेक्ट. ठीक है, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्रिएट हो गया. But my point is okay. But my point is served at ice cream parlor. Although it is not purely ice cream, na, they have clarified only in respect of ice cream. Sir, so the ice cream scoop that is coming on that brownie with ice cream in the ice cream parlor Have been 5%. will be 5%. Will be 5%. Because it is not purely ice cream. By treating it as restaurant service. Restaurant service. ये सब बात आइसक्रीम पार्लर को ये बात नहीं कर रहा है कि आप आइसक्रीम छोड़ के और कुछ बेच रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट सर्विस से बाहर आ जाओ. ये बोल रहा है आप सिर्फ आइसक्रीम बेच रहे हैं तो 18 तो लगेगा. आइसक्रीम पे 18 लेंगे अगर आप आइसक्रीम पार्लर. आइसक्रीम पर जो 18 देना, my question is under SSC or HSN. I am not clear about this. अगर सर 18% लगेगा तो HSN से लगेगा क्योंकि वहाँ सर्विस को लिमिट का एक्सटेंड कर रहा है. Yes. या प्रिपरेशन की जो बात कर रहा है, जैसे नाइट्रोजन आइसक्रीम जो है, दे आर प्रिपेयरिंग आइसक्रीम फॉर यू, जैसे तुम ऑर्डर प्लेस करते हो. हाँ, ठीक है ना, तो किस में जाएगा वो? जैसे बोले कि ये कुकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम है, आई एम प्रिपेयरिंग आइसक्रीम फॉर यू एज यू ऑर्डर. एकदम इसमें ये देता है क्या पार्लर में मेरा point क्या है? हाथ से वो बनाता है ना. My point is that cooking is not mandatory for any restaurant services. कोई चीज है कुकिंग का मैं साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ. उसका का जो मैडम ने एग्जांपल दिया है वो तो बना के लेके आया है ऑलरेडी बाजार से. वो तो बनाया नहीं है, रेस्टोरेंट सर्विस तो बनाया नहीं है, तो क्या उसको रेस्टोरेंट सर्विस से बाहर कर देंगे? इसमें मैं सर एक शेयर करूंगा. कलकत्ता में कुकी जार में क्या हुआ, मतलब formally a complaint was raised with the DG Taxpayer Services against Cookie Jar. When in November 17 the rates were changed in a restaurant from 18 to 5. उस समय क्या देखा गया, कुकी जार 3 महीना के बाद तक ही वो जो पेस्ट्रीज बेच रहा है या ब्राउनीज बेच रहा है या जो भी बेच रहा है उस पर वो 18 या चॉकलेट उस समय 28 थी तो 28 ही रेट लगा रहा. डीजी टैक्सपेयर सर्विसेज के पास कंप्लेन गया था एंड बेस्ड ऑन दैट दे टुक एन एक्शन. जहां पर फिर वो क्या किया, अब आप उनके अंदर कुछ भी आइटम खरीदिए 5 ही चार्ज कर रहे, क्योंकि वो तो आइसक्रीम भी बेचते हैं उसके अंदर,
pastries, cakes, सभी कुछ biscuits, Restaurant service. and bakery items also, everything. So वो 5% में आ गया वापस, मतलब after the DG tax person से look at it. Now same coming to back to same cookie jar, अगर cookie jar आइसक्रीम बेचेगा तो 18 देगा, बैलेंस सब चीज पर 5 देगा, तब तो वो आज के दिन ये भी बोलेगा सर अगर आप मेरे से ब्रेड लेकर जा रहे हैं, ब्रेड तो एग्जेम्प्टेड है, हम तो ब्रेड पर टैक्स नहीं लेंगे आपको, because that cookie jar is selling bread at 5%, because वो बोलता है भाई मेरा तो composite supply है, आप मेरे से सिर्फ ब्रेड लेकर जाएंगे, हम तो रेस्टोरेंट सर्विस है, it has a place to stand where and you can stand and eat it. Right. आप उससे ब्रेड का पूरा लोफ का पैकेट लेकर जा रहे हैं. टेक्निकली अंकित भाई एक चीज सोचो कि अगर प्लेस नहीं भी हो, टेक अवे का भी ऑप्शन हो, स्टिल इट इज ए डील, राइट? Yes. You cannot deny this fact. Yes. एकदम correct. So if they say What you are, the 80%, compulsion is compulsion by motive is that, I mean, this definition is the compulsion is restaurant service by way of part of service in any form, on the goods or with the goods, then food, then the any article for human consumption or which are covered under the restaurant service. Cooking होना जरूरी नहीं है, बैठ के खाना जरूरी नहीं है, घर में जाके खा सकते हैं, खाने का सामान होना चाहिए. This circular is getting confused. Very confused. so what is the conclusion, sir? Confusion आपको बताना सर. Confusion. Except ice-cream. Conclusion is confusion. More opportunities. Conclusion is confusion stated by. More But you opportunities. have to give the proper answer, otherwise you have to pay for More that. opportunity, more litigation, more opportunities for you. Sir, Now, ice cream opportunity limited. Ankit, now coming to the last discussion, this is very important. You go to circular number 163, para number 14, right? Related to goods. ठीक है? ये बड़ा अच्छा बात यहाँ बोल रहे हैं सर. यहाँ क्या बोल रहे हैं? कि corrugated box and carton falling under the chapter heading 4819 attracted GST at the rate of 12%, into number 122, with other carton falling this heading attracted GST at the rate of 18%. Please listen very carefully. Disputes have arisen as regards applicability GST on fiber drums, which is partially corroborated. This dispute gets resolved on account of recommendation of the GST Council in its 45th meeting to prescribe a uniform rate of 18%. यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा मुझे. क्या बोल दिया, ठीक ही बोलो. ठीक ही बोल रहा है. अब पैरा नंबर 14.2. So please listen very carefully. इसमें आपका इनपुट चाहिएगा. And I request कि ये बेनिफिट सबको मिलना चाहिए जो इसमें दिया गया है. 14.2 क्या बोल रहा है? For the period prior to 1st October 21, the council, upon taking the note of the fact that there was an ambiguity regarding the GST rate applicable on the fiber drums because of its peculiar construction partially corroborated, has decided that the supply of such fiber drum, even if made at 12% GST during the period 1st July 21 to 30th September 21, would attract GST at fully GST paid, would be treated as fully GST paid. Therefore, no action, please underline this word, therefore no action for recovery of differential tax over and above 12% already paid would arise. However, as decision has only been taken on the regularized the past practice in view of the certain ambiguity as detailed in para 14.1, no refund of GST already paid shall be allowed if already paid at 18%. मतलब अगर उनको कंफ्यूजन खाली है तो ये प्रिविलेज है, राइट? अगर सो कॉल्ड आपको खाली कंफ्यूजन है तो ये प्रिविलेज आप नहीं मिलेगा. तो ये क्लैरिफिकेशन जितने सारे आप दे रहे हैं, so definitely you have the confusion in your mind. That's only you are coming for the clarification, na? So these are the Copy of this should also come in service clarification and all service clarification, all clarification, all rate changes clarification. तो भाई ठीक है, यहाँ पर आप क्लेरिफाई कर रहे हैं. That means you have in mind that either in the way of industry or in council itself there is a confusion. So not required in council in industry between department officers, different double layer judgments. Correct. They have different Different rates. and by that only they are coming through circulars. Circulars. जब तक वो नेशनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी नहीं बनाएगी तब तक तो उसको सर्कुलर लाना ही पड़ेगा. Circular लाना पड़ेगा. In that case, that privilege must be given to the all the cases. Correct. Appreciate. 100%. Agreed. Other cases also. All other cases. When you are allowing in particular in paragraph 14.2 and you are restricting the refund as well. मतलब जो 18 दे दिया वो आप रख के लेने तैयार हैं. ठीक है सर, वो 18 लिया हुआ तो
चार्ज पे खर्च क्या होगा? सामने वाला इनपुट पे खर्च किया होगा वो यहाँ पे रेवेन्यू नेटर हो रहा है एकदम। उसको हम रिलैक्स दे रहे हैं साथ में ये बोल रहे हैं वहां पे एक्शन भी नहीं लेंगे आपने कोई बारह किया है तो क्या आपको डिफरेंशियल 6% नहीं देंगे तो सर सेम पैरेलल प्रोविजन तो सब पे अप्लाई होना चाहिए ना अब उसको लेके भी इशू आ जाएगी अब ये जो सर, इसको डिफरेंशियल भी ट्रीटमेंट जो है नोट हाँ इसको भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को लेके भी ये हो जाएगा फिर हाँ मतलब यू शुड नोट दिस इन आवर एक्सप्लेन को जो है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो उसके आ जाएगा करेक्ट सर। राइट आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 जाएगा सर आर्टिकल 14 जाएगा आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 के हिसाब से सर ये मेरे हिसाब से अगर ये प्रिविलेज यहाँ मिल रहा है आई एम नॉट डिनाइंग प्रिविलेज दिस इज वेलकम प्रिविलेज करेक्ट यहाँ पे कंफ्यूजन है वहां पे तो होना ही चाहिए ये चीज भाई आपको खुद को नहीं पता है मेरे को भी नहीं पता है तो हमने कोई अगर ये डिफरेंशिएट कर दिया अब आप पूछिए किसी का 4 साल से अपने जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं उसका पूरा मेन टेस्ट ही खत्म हो जाएगा किसी का 4 साल से अगर 12% 6% या डिफरेंशियल 5% का रेट अगर किसी को अप्लाई होता है वो पूरा रोड के लायक भी नहीं हो सकता सर मैं आपको कंपोजिशन वाला जो एग्जांपल दिया समझ सकते हैं? 1% और 11% देना है और कोई इनपुट भी नहीं लेना कहाँ से देखा बोला हमको अंदर कर दो कोई दिक्कत नहीं है हम नहीं देंगे एंड इज एन 80-year person 80-year old ये actually- person तो senior super senior से rejected this is all about the today's deliberation. Thank you for your patience. महेंद्र भैया थैंक यू Thank you, Sri Vikas Kumar Banka, today honorable speaker, for explaining very nicely in a very simple way all the amendments, clarification and GST rate for the service and goods. He has nicely explained in a simple way the code. How to remember the code under the 3 112, 212 and 413. First digit is for the goods and another 2 digits for the service. It's a simple way, it is easy to remember and easy to check everything. Now I request Ghanshyam to please bring the memento today. Sandeep sir, please come forward and offer a memento to our honorable speaker today. That's an interesting. And I request if any audience on the virtual who are sitting, if they have any query. Okay, if I am allowed, I have some query, if it can be raised. So you have said that the entertainment, we are going, if any ticket more than 500, it is going to be taxed at 18%. Suppose an NGO who is organizing a marathon, rate may be 500 less or maybe 500, whether they will fall under the GST. See notification number 12. Notification 12. 12 by 2070, there is a composite notification. If the services covered under that, any of the entry of the notification number 12 is to NGO, then it is otherwise. Because they are not charging for the, they are taking as a donation. So whatever the donation you are taking, that is the charge against the services. It is not donation. No, it is clearly mentioned donation 500 rupees. Then there should not be any service against of the donation. But for participant giving the donation and taking participant in the marathon. GST applicable in the How simple. they are contradicting themselves. Yes, it is contradicting. But whether donation is charitable trust है कि नहीं? Charitable trust. 12 ATC all level. But in GST law exemption for 12 is for specified activities, not of the total activity that's for income tax. So in GST law under notification 12, what Bankaji told, the exemption is very limited to certain line items, which is specified purposes, like for education of children and all those things. In your case, this though it is a donation, in the nature of donation, but the activity from it is marathon, and you are giving T-shirts, you are giving food. Yes, all So composite. So this will not qualify per se under the exemption per se.
On the Subject to further verification in notification number 12/2017, if your item is specifically covered over there, then it is. Otherwise exempted. If it is covered, exempted, otherwise. Unless and until exempted through notification of. correct. Just one more simple question. Sales promotion versus sales incentive. Generally, what we see in the field of the pharma company, they have to give to the doctors in this way that way. What will be the best way we can suggest so that GST input can be available? So please refer circular number 92. 92, that was in March 7th March 2019. Right? Because line number of number. From there you can ascertain whether this is taxable or not. First one. Second, डॉक्टर्स को जब वो गिफ्ट दे रहे हैं, क्या वो सेल्स प्रमोशन में उसके फर्दर क्या यूज हो रहा है, ये सारा उसको लिंक करके आप लोग सर्कुलर 92 में जितनी भी सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स है, एक पे एक फ्री, एक पे दो फ्री, बिना कुछ लिए ये गिफ्ट वो गिफ्ट सारे यहाँ पर उस क्लेरिफिकेशन के साथ आपके ट्रांजैक्शन को क्रॉस चेक कीजिए, वहां तक वो मिलेगा। Thank you, sir. Now we expect that we have some more such studies happening in the future, and we request Mr. Banka, they will should also come and spend time to enhance, share their knowledge with us and all our participants. Thank you. Thank you. Thank you. Now I request CA Barkha Gulala to offer a vote of thanks. Thank you, Chandrena sir. I thank on behalf of BKTA and today's physical and virtual participants to our speakers here, Vikas Kumar Bankaji, for sparing his valuable time and giving insight knowledge on recent amendments, clarification in GST rates for services and goods. Our participants have gained immense knowledge from it. I thank all the participants for patient hearing. Thank you. Yes.